Good afternoon, everyone. I, on behalf of APCH, welcome you all to today's session on European Union regulation on deforestation of tree products. Now, this is a new regulation that is going to come into effect from 31st December 2024 onwards. And as you may be aware that you can call it an extension of EUTR. There's a regulation which came around 10 years back, which was European Union Timber Regulation. And EPCH helped you comply with that regulation through its bridge scheme. And now there's a new challenge wherein we have to adhere to the geolocations in our chain of custody. And we are working on it. We have been doing stakeholders consultations across the country. We've been meeting exporters, we've been meeting government, we've been meeting, interacting with other agencies to find a solution to it. Now we have with us our past chairman, Shri Ravi Pasiji, and the faculty of the day, Shri Sachin Raj Jain, and his associate, Mr. Dhananjay. So before I request Mr. Sachin Raj Jain to initiate the discussion and make a presentation, I would request Mr. Pasi to welcome him with a bouquet of flowers. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Mr. Sachin Raj Jain to initiate the discussion. So good evening, everyone, and thanks for giving me this opportunity to speak in front of you on certain facts, figures, and our preparation regarding the EUDR. We have done an earlier session also, I think last year, that with the biennial institution here, and this is our second session. So I have made that time also a presentation and then try to synthesize on a few that what is this regulation, how it is going to impact the trade here in India and globally also, what would be the major requirements from your buyers' end, and what would be your challenges here in India to comply with this regulation and the requirement which needs to be fulfilled by your buyers abroad. So I would really be very happy to keep the entire session very interactive from the perspective that I understand that this time now, because it is in a very advanced stage, EUDR, you people must also be knowing about this regulation a lot. You have been hearing it from your buyers also, and you must have read about also the EUDR. So you might have a lot of questions in your head, and then I think I would also be very happy if there is some kind of questions which I have never heard, or you are encountering that challenge in your supply chain or the requirement from the buyer perspective. So that would be really good for us also to incorporate on something that we are currently designing a system for complying with EUDR under the bridge system, under the bridge scheme. But there might be a lot of people here who may not be knowing EUDR that much. So I will take like just 10 minutes to go through this presentation and then tell you the important features of the regulation, so that the people who does not know about it have got certain sensitization. And the most of the time we will keep it for the interaction. And during this interaction, I would be able to tell you about the preparation that we are doing there. So that would be the way forward. So Mr. रावत जी ने अभी बताया है कि 2013 में EUTR was introduced by European Union, that was timber regulation. अब उनको इन 10 सालों में ये समझ में आया है कि तो हमको यूरोपियन यूनियन को ये समझ में आया है कि भाई 10 साल हो गए बट उतना इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाए इन द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। और ये सारा का सारा जो इसका ओरिजिन है वो
यूरोपियन ग्रीन डील एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक तरीके से आप समझ लीजिए उनका एक नया बाइबल है, जिस बाइबल को लेके वो पूरा का पूरा एंटायर ट्रेंड सेट करना चाहते हैं ग्लोबली फॉर आवर डे टू डे लिविंग, हमारा कंजम्पशन पैटर्न, हमारा ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, हमारे ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द प्लैनेट एंड इट्स इन्वायरमेंट. So it is a very intense document. I could read a part of it, not the whole document. तो उसके बहुत सारे ऑफशूट्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट पे और टिम्बर इंडस्ट्री के पीछे ही इस तरीके की सोच बनाई गई है, बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल. डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन इन द फॉरेस्ट इज अ बिग फैक्टर इन द क्लाइमेट चेंज. तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. बट अगर आप और अदर इंडस्ट्रीज़ को देखें तो इंटरवेंशन तो हर जगह है. जैसे कि CBAM का और इंट्रोडक्शन करा है. अभी CBAM इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर अभी उन्होंने 5 कमोडिटीज़ को लिया है, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड पल्प एंड पेपर को लिया है. और उसमें उनसे ये मांगा है कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट हमारी मार्केट में प्लेस होगा, यूरोपियन यूनियन में होगा, उसको कार्बन न्यूट्रल होना है. तो इनको वहाँ पे कैप बना दी गई है उन सारे सेक्टर्स को. यहाँ वाले सेक्टर्स को जो कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इनके लिए एक डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट सेट करी गई है, जो कि EUDR का वर्जन 2 है, जिसको हम EUDR रेगुलेशन बोल रहे हैं. तो इसका इंटरनली मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल परसेप्शन और जनरल आइडिया बता रहा हूँ जो मेरे को मालूम है. इसका काफ़ी जो है विरोध भी हो रहा है इसको. मतलब नॉट एवरी कंट्री इज एबल टू रियली एक्सेप्ट इट. नॉट आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन बट विद इन यूरोपियन यूनियन दैट 12 countries who is continuously opposing this regulation within the European Union, because it is very difficult for them to comply with the regulation. क्योंकि इस रेगुलेशन को 2 तरीके से देखा जाता है. जब आप देखते हैं कि अगर EUDR आया था और आप लोग स्टेट से जुड़े हुए हैं, तब आपको याद होगा कि भी लीगैलिटी को लेके बड़ा इशू क्रिएट हुआ था. बट किसी तरीके से हम लोगों ने कोई ना कोई रास्ते निकाल के उसको फैसिलिटेट करते रहे और रास्ता निकला, ट्रेड चलता रहा. अब तो कोई ना कोई इस तरीके का रास्ता. तो उस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखा हमने उस रेगुलेशन को और बहुत डरे उस रेगुलेशन से. बट पिछले 10 साल से मुझे नहीं लगता कि ट्रेड पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आया हो उस रेगुलेशन का, कि जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. इसके बीच में एक घटना और हुई थी जब शीशम को अपेंडिक्स 2 साइटस में डाल दिया गया था, तो उसके ट्रेड पे जरूर इम्पैक्ट आया. और उसके इम्पैक्ट आने का भी कारण ये नहीं था कि हम इंडिया में उसका सोल्यूशन नहीं दे पाए. प्रॉब्लम उसमें सिर्फ ये हुई कि जो बाइंग साइट है उन लोगों को उन्होंने थोड़ा सा दे स्टार्टेड गेटिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, कि भाई हम इसको ना टच करें, कंट्रोवर्शियल है, कल हम पे कोई NGOs आके अटैक करेंगे, कुछ गड़बड़ होती है. तो बाहर के फॉरेन बिजनेसेस अपने ऊपर इतना रिस्क लेना नहीं चाहते अपने रेपुटेशन के ऊपर. तो उसकी वजह से शीशम का ट्रेड थोड़ा डाउन गया है. वरना अगर आप देखें तो हम लोगों ने उसका भी एक शिपमेंट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और अभी तक हम मोर देन 30,000 सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं. तो हमने उसका भी पूरा रास्ता निकाल के और उसको चलाते रहे. तो अब जब हम इसको देखने जा रहे हैं, हम जब EUDR को देखने जा रहे हैं, जो कि आप मानिए कि अब एक 10 साल का बच्चा हो गया जो 2013 में आया था, अब मतलब ये थोड़ा पावरफुल है रेगुलेशन. तो इसमें रास्ता भी है, काम भी चलता रहेगा, जो मेरा मानना है. पर साथ साथ हमको इसमें मेच्योरिटी अपने ट्रेड के अंदर भी लानी पड़ेगी और अपनी सप्लाई चेन के अंदर भी लानी पड़ेगी, और एक वो ट्रस्ट को बिल्ड भी करना पड़ेगा, जो ट्रस्ट अभी तक बन नहीं पाया है. जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं, जो प्रिवेलिंग स्कीम इन द मार्केट लाइक FSC, PFC, उनको बिल्कुल एक रेड कॉर्नर दे दिया गया है कि भैया दे आर नॉट द ग्रीन लेन टू द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन. तो यानी कि
कुछ भी जैसे चल जाता था वो चलने वाली कहानी नहीं रहेगी, पर बहुत कुछ रुक जाएगा या बहुत चैलेंजिंग वाली सिचुएशन आएगी ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, धीरे धीरे अगले 2-3 साल में इस पूरे इकोसिस्टम को, इस इन्वायरमेंट को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि बिजनेस जो है बढ़े इंडिया से। और ये बहुत बड़ा चांस मैं खुद देख रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी को एज ए बून इन डिस्गाइज फॉर इंडिया, फॉर ऑल द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट नाउ दे कैन बी ग्लोबली वेरी कॉम्पिटिटिव if we at all prepare us. And this preparedness will not only be the owners of the industry, the exporters, but the entire supply chain, जहाँ से उनका मटेरियल का procurement होता है. Government has to play a vital role here in the entire scenario. बहुत सारे regulations जो हैं Forest Act की वजह से या Forest Conservation Act की वजह से जो बने हुए हैं उनमें regulations में change लाने की बहुत ज़रूरत है. ट्रांजिट रूल्स के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है. सॉ मिल्स के जो लाइसेंसेस के रिन्यूअल के सिस्टम्स हैं उनके अंदर सिस्टम्स को लाने की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि पूरे कंट्री को एक इकोसिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा जो ओवरनाइट नहीं होगा. बट ये ज़रूर है कि इसको EUDR को कहीं से भी डिफर होता हुआ भी देखा जा नहीं रहा अभी. कई बड़े कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, वो बहुत मतलब पुरजोर कोशिश लगा के विरोध कर रहे हैं कि भाई इसको डिफर करिए या फिर नहीं. बट अभी तक तो सिर्फ ऐसी सुनने में आ रहा है और ऐसी देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन इज वेरी एडमेंट स्ट्रिक्ट ऑन दिस रेगुलेशन एंड देन दे आर स्ट्रेट अवे सेइंग इफ यू कांट अबाइड विद द रेगुलेशन सो सॉरी देन वी डोंट हैव एनी प्लेस फॉर योर गुड्स इन आवर मार्केट. सो इट इज लाइक दैट. तो ये EUDR है बेसिकली और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टफ है भी और मेरे को बहुत ज़्यादा टफ दिखती भी नहीं है. अगर थोड़ा सा कोलैबोरेशन में, कोऑपरेशन में, इंडस्ट्री के कोऑपरेशन में, आप लोगों की सप्लाई चेन में, आप लोगों के बायर्स में आपका अपना रोल होगा यहाँ पे प्ले करने का टू रियली प्रिपेयर योर वेंडर्स for something which is little new to them. अभी उनको क्या है कि कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, बैठे बिठाए फैक्ट्री जहाँ से मिल रही है वहाँ से खरीद ले रहे हैं और उसके आगे वो थोड़ा आगे जाना चाह नहीं रहे हैं. पर जाना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को बहुत उनकी थोड़ी मदद भी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर भी करना पड़ेगा और आपको अपने बायर्स के साथ मिलकर हमारे सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंसी से देखना भी पड़ेगा और उनको दिखाना भी पड़ेगा so that this trust can be built between the BRICS system and the requirement under the EUDR. If आप लोगों के बायर इस चीज़ को अच्छे से देख लेता है, हमारे सिस्टम को समझ लेता है पूरा, आप लोग भी हमारे सिस्टम में जितनी कमियां निकाल के हमें बता सकते हैं, हमको बताइए क्योंकि हम भी इस बार पूरा वाटर टाइट सिस्टम हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस सिस्टम के ऊपर पूरा ग्लोबली कोई भी बायर बिलीव कर सकता है और उसको ट्रस्ट कर सकता है और बिना किसी फियर के, बिना किसी अप्रीहेंशन के वो अपने ऑर्डर्स आप लोगों के साथ यहाँ पे प्लेस कर सकता है कि हाँ भाई इन लोगों की प्रिपेयर्डनेस पूरी है. तो उतनी जितनी प्रिपेयर्डनेस हमको तैयार करनी है, करवानी है, उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस अंडरस्टैंडिंग में हमारा ये मानना है कि हम काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं. हम रेगुलेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम इंडिया की सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हमको क्या इंटरवेंशन लानी है इन द एंटायर सिस्टम उसको बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं. पर फिर भी हम कहेंगे कि वी आर स्टिल शॉर्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग और जहाँ पे हम लोग शॉर्ट हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में वहाँ पे उस गैप को आप लोगों को फुलफिल करना है अपनी सोच से भी और आप लोगों की मदद भी यहाँ पे चाहिए होगी. तो कमिंग बैक टू दिस रेगुलेशन अगेन, तो पहले सिर्फ ये लीगैलिटी वाला था तो ये टिम्बर रेगुलेशन बोला था और ये टिम्बर के ऊपर ही था. अब उन्होंने इसमें 6 और कमोडिटीज डाल दी हैं, है ना, कोकोआ, कॉफ़ी, केटल, पाम ऑयल, रबर, सोया, ये सारी की सारी कमोडिटीज और डाल दी हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ट्रेड या आप ही के पीछे कोई पड़ा हुआ है और इस तरीके से काम हो रहा है. नहीं, इट इज अक्रॉस द बोर्ड एंटायरली जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब के ऊपर किसी ना किसी तरीके के ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं टू फुलफिल.
टाइमलाइंस आपको बता देता हूँ कि टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। 2024 आप मान के चलिए दिसंबर में जो शिपमेंट्स वहाँ पे लगेंगी they would be requiring. As of now, this is the position. कल कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के साथ, कोई WTO के इंटरवेंशन के साथ या कोई इस तरीके के मेजर लेवल पे कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो कहानी कुछ और हो सकती है। बट आज की डेट पे अभी तक का सिनेरियो यही है कि दिसंबर 2024 तक भी जो भी शिपमेंट वहाँ पे जाएंगी दे नीड टू बी ready with the EUDR requirement. इसमें थोड़ा सा वो लेवरेज मिला हुआ है कुछ मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, बट वो आपकी मिडिल स्मॉल वाली डेफिनेशन आपके बारे में बात नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन में जो बैठे हुए आपके डिफरेंट कंट्रीज में बायर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो उनको 6 महीने का थोड़ा सा लेवरेज और मिला हुआ है और आप मान के चलिए कि अब टाइम यहाँ पे कोई ज़्यादा बचा नहीं है। ये मैंने आपको भी बताया कि ये खाली वुड नहीं है, ये वाली कमोडिटीज़ भी हैं और आपको ये भी मतलब जानकारी देखिए मेरे को खुशी हो रही है कि हम ही एक ऐसा सेक्टर है इन द एंटायर इंडिया थ्रू EPCH एंड थ्रू दिस वृक्ष प्रोग्राम जिसने इस चीज़ को बहुत पहले पकड़ लिया था, बहुत पहले से इस पे काम शुरू हमने कर लिया था। बाकी सेक्टर्स का तो अभी मतलब कोई प्रिपरेशन ही नहीं दूर तक। अगर आप लोग एज ए बाइंग कंपनीज, सोर्सिंग कंपनीज इन किसी सेक्टर्स में डील करते हैं और इन किसी भी कमोडिटीज़ में डील करते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रिपरेशन कहीं भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये मैं बता देता हूँ कि अमेरिका भी ये बोल रहा है, चाइना भी ये बोल रहा है, इंडिया से हम भी ये बोल रहे हैं कि ये एक ट्रेड बैरियर्स हैं ना, और ये हमारा वुडन का जो वो है बिजनेस है उसको रोकने के लिए ट्रेड बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। इस तरीके की धारणा और इस तरीके के नेगोशिएशंस के लिए पॉइंट बना के बड़ी गवर्नमेंट नेगोशिएशंस करती हैं। पर मैं खुद एक यूरोपियन यूनियन के वर्किंग ग्रुप में हूँ जो डायरेक्टली यूरोपियन कमीशन को रिपोर्ट करता है। तो कई बार कई चांसेस ऐसे हुए कि उन लोगों से हमारे जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन हुए हैं तो उसमें मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन ये है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट द एनवायरनमेंट नाउ। उन्होंने देखा कि पिछले 10-12 सालों में हमने टिम्बर रेगुलेशन को लाने के बाद भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। बहुत मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल बीइंग डिफॉरेस्टेड और इलीगली वो हो रहा है। वी आर लूजिंग आवर वर्जिन फॉरेस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, द रेट इज नॉट कमिंग डाउन। तो उस वजह से दे हैव टेकन दिस वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन दिस टाइम और बड़ा सीरियस है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेगुलेशन बना दिया, रेगुलेशन तो EUDR से 10 साल पहले बन गया था और पूरा टाइम भी दिया गया था, लेकिन अगर उसका कोई इम्पैक्ट दिखा ही नहीं है कहीं भी किसी रिपोर्ट में तो अब मतलब आप किसी कह दीजिए कि उन्होंने टाइट कर दिया है सिस्टम को, रिक्वायरमेंट को, और कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्टेज में वो दिखाई दे नहीं रहे। अब जैसे फैशन वर्ल्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यूरोप जो है ना ट्रेंड सेट करते हैं, है ना, खाने पीने की चीज़ों में भी, फैशन में भी, क्लोथिंग में भी, हर चीज़ में यूरोपियन ट्रेंड सेटर्स रहते हैं। बाकी कंट्रीज उनको फॉलो करती हैं, चाहे डिमांड साइड है या सप्लाई साइड है। तो अब इसी रेगुलेशन को देखते हुए यूके की या US का लीजिंग एक्ट जो कि अब फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, and Australia Legality Act also, there are other countries also going on a similar line. तो जो इम्पैक्ट और जो रिक्वायरमेंट आज आप यूरोपियन यूनियन की देखेंगे, आने वाले 2-3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि ये सेम रिक्वायरमेंट आपको क्रॉस द बोर्ड ग्लोबली दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि इंडिया एज ए कंट्री फॉर इम्पोर्टिंग सच गुड्स ऑल्सो हैव द
equal requirements. This also have a very high chance that India also having certain regulations. तो आप लोग कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई किसी लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा बाहर नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग मार्केट फॉर यू, और आपको कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप मतलब थोड़ा बहुत बिजनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं करेंगे सप्लाई, ऐसा आपके मन में ख्याल आ सकता है। पर मेरा मानना ये है कि इसके चलते चलते ही अगर आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज अ बिग मार्केट, तो you will see these regulations are repeated there also in the same form. तो better यही है कि let's keep preparing for it, and एक cooperation आपका जो हमको चाहिए, एक collaboration आपका जो हमको चाहिए, वो हम सब मिलके साथ काम करते हैं। ये मैंने आपको अपना एक जर्नल उसमें बताया कि these are the three systems currently to comply with it was to comply with the EUDR. तो ये तीन सिस्टम हमारे थे जिसमें PFC और FSC जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम्स थी, बट ग्लोबली ऑपरेट करने वाली स्कीम्स थी। वृक्ष हमारी स्कीम्स इज वेरी कन्फाइंड एंड लिमिटेड टू द handicraft sector only, and we are not a self-help group scheme. We have got a notification, legal notification from Government of India. So it is something which on a bilateral dialogues के अंदर have a solid base, the recognition of the government, whereas the other two schemes does not holding this kind of a recognition from any of the government. तो ये आपको बड़ी important information कैरी करनी है, अपने दिमाग में रखनी है और इसको कॉम्प्लिकेट भी करना है। अगर आप ये कंपेयर करेंगे वृक्ष के प्रोग्राम को विद एनी अदर स्कीम्स एग्जिस्ट ग्लोबली, कि वी आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्कीम उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन के ऊपर स्कीम तैयार हुई है। कल अगर हम बायलैटरल डायलॉग में या FTA के अंदर अगर हम उनके साथ कोई नेगोशिएशंस में गवर्नमेंट जाती है, अभी तो लगता ही है कि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि गवर्नमेंट वुड हैव दिस सिमिलर stance like China and America, that we are not prepared and we cannot really comply with this regulation, so it needs to be deferred from now. This is the major chances to have this kind of stand by the Indian government. But अगर कहीं भी इंडिया की प्रिपेयर्डनेस की बात आती है कि हाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग, अगर यूरोपियन यूनियन, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डायलॉग होता है, कोई बात होती है, तो वृक्ष इज द प्रोग्राम which government will really be demonstrating in front of the European Union and the different competent authorities in the European Union. तो आपको ये समझना होगा कि this is a program with a solid base. It is not a program something which has got a market recognition but not any sovereignty or the government recognition behind it. तो this is very important for you to educate और ग्रेजुएट हो गए होंगे EUDR और EUDR को समझने में, बट एक बार फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसको आगे स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल में हमने लिया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों को लेना है तो पीछे ले लें प्लीज। बार बार कंफ्यूज होते हैं, खासकर जब हम बात कर रहे होते हैं दी रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन डायरेक्टली कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ही जो भी बिजनेस एंटिटीज हैं उनके लिए ही टर्म है ना। सो ये ऑपरेटर दो एंटिटी कैन बी दिस ऑपरेटर, वन हु इज हार्वेस्टिंग द ट्रीज देयर एंड प्लेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूरोपियन यूनियन इन एनी ऑफ द कंट्रीज would be called operator. Secondly, your buyer who is placing the goods, the finished goods from any country, but the first time in any of the country in European Union would also be called operator. So if the buyer has less than 250 employees, then I think they should not worry about it. No. So that would only be changing its class from the large class to the medium or the small class.
but not that anybody is out. Anybody who is placing the goods from the forest is called operator. उसके बाद ऑपरेटर से कोई भी ट्रेडर माल लेके प्रोसेसर को, सॉ मिलर को या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को या कोई भी वुड बेस्ड इंडस्ट्री को जो प्रोसेसिंग करता है उसको देता है, एंड नाउ इट कम्स बैक टू द ऑपरेटर अगेन. नाउ दिस इज द वन हु इज फाइनली disposing of the goods from, either in the form of the export from European Union to the any other country, or maybe from any store to the consumer. इस पूरे रेगुलेशन को जब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग और टाइट और करा गया है, तो दिस इज वन ऑफ दैट फीचर. ये कहता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ से भी यूरोपियन यूनियन अपने माल की सोर्सिंग करता है किसी भी फॉर्म में, तो उन कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन बेंचमार्किंग देगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री. अब इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंडिया से वो फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट लेता है ना, तो उनके पास इंडिया को डालने के लिए 3 कैटेगरीज हैं. या तो वो इंडिया को हाई रिस्क में डालेंगे, या वो मीडियम रिस्क में डालेंगे, या लो रिस्क में डालेंगे. अगर मान लीजिए आपको इंडिया को लो रिस्क में भी डालते हैं, तो इंडिया से जाने वाली 1% शिपमेंट्स, अगर 100 शिपमेंट एक साल में गई है, तो एक शिपमेंट किसी भी कंट्री में वहाँ की जो कॉम्पिटेंट कस्टम्स जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो क्लियरिंग देती हैं, वो उसको 100% स्क्रूटनाइज करेंगी. जैसे आप लोग भी सैम्पलिंग बेसिस पे अपने वेंडर्स की शिपमेंट्स को जाके क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वो AQL लेवल पे करते हैं, इतना. तो सिमिलर टाइप ये भी अगर लो रिस्क है, और अगर आपका मीडियम या स्टैंडर्ड रिस्क है, तो 5% की शिपमेंट जो है आपकी, अप टू 5% शिपमेंट, यानी 100 में से 5 शिपमेंट को वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा मांगेगी कि भैया आप ये सारे के सारे कागज दिखा दीजिए. अपार्ट फ्रॉम द ड्यू डिलिजेंस विच नीड्स टू बी डन एट 3 लेवल, चाहे वो आपका बायर कर रहा है ड्यू डिलिजेंस उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसको वो गुड्स को प्लेस कर रहा है अपनी कंट्री में, या आप करके दे रहे हैं एज ए बाइंग एजेंट उनको अपने वेंडर से इंफॉर्मेशन लेके. ये आपका वेंडर को आपने बोला है कि आप इस ड्यू डिलिजेंस को करके डेटा दीजिए हमारे बायर के लिए, क्योंकि उसे अपलोड करना है, और उससे पहले जब तक वो अपलोड नहीं करेगा तब तक आप यहाँ से शिपमेंट छोड़ेंगे नहीं. और हो सकता है कि तब तक बायर ऑर्डर ही ना कंफर्म करे जब तक उसको ये ना पता लगे कि जिस बैच से वो मटेरियल बनाने वाला है वो बैच भी कंफर्मेंस में है या नहीं है. तो इट कैन लीड टू दैट डिग्री ऑल्सो. पर मेरा वही मानना है थोड़ा कि शुरू में मतलब हम लोगों को जैसे भी मैनुअली थोड़ा काम करके इसको सेट रखना पड़ेगा, बट बाद में हमको सिस्टम को पूरा मैच्योर करना पड़ेगा. उसके बगल वाले ने को पता था कि इसने माल तो भेजा और इसने बंद करा हुआ है, सर एक सेकेंड, या कोई भी बात है, तो वो शिकायत अगर करता है तो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आपका जो बायर वहाँ बैठा हुआ है उसके ऊपर वहाँ पे उस कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ पूरा का पूरा, जैसे आपका इनकम टैक्स की स्क्रूटनी या GST की स्क्रूटनी होती है जिन बिजनेसेस की, उस तरीके की स्क्रूटनी होगी, और उसका पूरा का पूरा जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन का बिल है वो उस बायर को भरना पड़ेगा. क्या उसके बाद वो क्लीन भी निकलता है, या उसके बाद वो अगर फॉल्टी निकलता है तो डेफिनेटली इसमें कैपिटल पनिशमेंट और पेनल्टीज बहुत हाई हैं. तो ये दूसरा फीचर है कि जो ये पुलिसिंग का काम उन्होंने इसमें जो पूरा अलाउ कर दिया है कि कोई भी किसी की भी कहीं से शिकायत करेगा और उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़रूरी है. तो इससे भी ये जो पूरा EODR है बड़ा स्ट्रांग बनता है. सर आप कुछ कहना चाहें? और अभी भी करने के लिए थोड़ा सा और कर सकते हैं वॉश, तब कितना लंबा करेंगे, नहीं चल पाएगा. ट्रेड उठा के कहीं ना कहीं वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ट्रेड, जहाँ पे बायर को एश्योरेंस मिल रही है कि हाँ भैया ये कंपनी ठीक है, इनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ठीक है, प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो ठीक है. और अभी तक तो कोई नहीं था ना चेक करने के लिए. अब तो चेक करने के लिए है कोई,
और उसका भी बाय रेगुलेशन उसे करनी है, उसको भी अपना डेटा 1% का रखना है कि इंडिया से लो रिस्क में इतनी शिपमेंट आई थी तो मैंने एक शिपमेंट ये पकड़ी थी और इसका मेरा ये पूरा ट्रेन है, और बाकी वो एक शिपमेंट के मतलब कहीं से भी निकली अगर एक शिपमेंट खराब तो वो रिस्क जो है बढ़ जाए, वो फिर मीडियम रिस्क में आएगा, फिर 5 शिपमेंट आपकी चेक होगी, अब 5 में से 2 और 3 फॉल्टी निकल गई या कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है ना, इसमें जो थोड़ा सा डरने वाली बात मेरे को ये लगती है, अभी जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक कंट्री उसका कुछ रिस्क असेसमेंट करते हुए कुछ डेटा जो था उन्होंने उनकी सैटेलाइट इमेज उनके डेटा के हिसाब से और उस कंट्री के स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से कुछ डिफरेंस था। यूरोपियन यूनियन का गलत था, उस कंट्री का ठीक था, पर मतलब अभी ये नए रेगुलेशन नए सिस्टम जब तक मैच्योर नहीं होता तो इस तरीके के रिस्क बिजनेस में मिल जाते हैं, हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि तो हमको अपना हर चीज़ काम को अपना फुल प्रूफ रखना पड़ेगा, और अभी फुल प्रूफ कर लेंगे, इस बार इसको अपॉर्चुनिटी मान के प्रूफ कर लेंगे अपना सारा का सारा काम, तो आई कैन गारंटी यू बहुत सारी कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नॉट टू गेट अबाइड और नॉट टू बी अबाइड बाय दिस रेगुलेशन एंड दैट कैन द एंटायर ट्रेड कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम बिग मैन। द ओनली थिंग, और हमको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, बस एक चीज़ ये करनी है कि यार जो रेगुलेशन की डिमांड है उसकी पूरी तैयारी करनी है, जो हमको वरिष्ठ प्रोग्राम के अंदर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट सेट करी गई है इस बार, उसके साथ हमको रिलीजियसली कंप्लाई करना है। बाकी गारंटी हमारी है, जैसे साइटिस के अंदर शिपमेंट आप लोगों के भी कई लोगों की जाती होंगी, आप लोग हमसे वो फैसिलिटेट करवाते होंगे शिपमेंट सर्टिफिकेट, आपने देखा होगा कि आज तक आपकी कोई भी शिपमेंट एक फंसी नहीं होगी अनटिल अनलेस कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गलत अगर आपको वेंडर के एंड पे होगा। So वृक्ष और EUDR में कंपैटिबिलिटी है सर? वृक्ष में और EUDR में हमने 100% कंपैटिबल बनाया है, और मेरा तो अपना ये मानना है क्योंकि मैंने और बहुत सारे सिस्टम्स भी देखे हैं पर दुनिया के सारे सिस्टम्स नहीं देखे, मेरे को इतना मालूम है कि वृक्ष से ज़्यादा सॉलिड सिस्टम अभी कोई है। और इस बात की मैं आपको एक चीज़ में बताता हूँ, वृक्ष का जो पूरा सिस्टम बना था आज से 10 साल पहले 2013 में जब बना था, तब हमने ड्यू डिलिजेंस सिस्टम, बैच अकाउंटिंग सिस्टम सारा का सारा वृक्ष के अंदर करा था, रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर। आप 2013 का ड्राफ्ट हमारा वो उठा के देख सकते हैं कि जो आज रिक्वायरमेंट अब जो EUDR के अंदर आई है या 2 साल के बाद फॉरेस्ट एक्ट में अमेरिका से और अदर कंट्री से आएगी, वो आज से 10 साल पहले हम ला चुके हैं, पर शायद हमने अपने सिस्टम को उतना रिस्पेक्ट नहीं करा, नहीं थोड़ा बाहर के सिस्टम को ज़्यादा बिलीव करा और अपने सिस्टम को नहीं करा, तो अब करिए आप सर। प्रॉब्लम अभी क्या है कि बायर्स FSC को ज़्यादा मानते हैं, वृक्ष को नहीं मानते हैं। सर आप बायर को देखें ना, उसके लिए क्या करा जाए? नहीं तो FSC को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया होगा यूरोपियन कमीशन ने या यूरोपियन यूनियन ने? आप खुद ही सोचिए ना इस बात। क्या मैं यहाँ पे आप बाइंग बैठे हुए हैं, मैं तो इस तरह की वर्कशॉप आपके वेंडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी कर रहा हूँ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन नॉट फ्रॉम वन क्लस्टर बट जोधपुर, जयपुर, सहारनपुर, हर जगह से ये है कि सर्टिफाइड FSC फॉरेस्ट को कुछ भी नहीं है, और जो है इतना मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल है FSC सर्टिफाइड, और वो जा रहा है, तो मतलब सर देखने वाले तो देखते हैं ना कि ये वो क्या है। सर क्या हमें वृक्ष को बाहर मार्केट ज़्यादा नहीं करना चाहिए? इंडिया में तो कर लिए हम लोगों ने कि 15 रुपये, अगर वृक्ष को आप फ्रैंकफर्ट में या उधर आप मार्केट करें उसमें मैं बताना चाहूँगा, हम जितने भी फेयर में जाते हैं हम अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं कि पैम्पलेट्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, और जितने भी खासकर फर्नीचर फेयर है जैसे कलोम हो गया, वहाँ हम उसको मार्केट करें, लोगों को बताएं, और हमारे फेयर के माध्यम से भी आपने देखा हमारा फेयर होता है, विवाह पूछ दे तो वी ट्राई लेवल बेस्ट वो गेट अक्रॉस टू द बायर्स कि भाई आप इस चीज़ को समझें कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कुछ हद तक पहुँच पाए। हमारे वृक्ष में लगभग इस इको सिस्टम में 400 के करीब एक्सपोर्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और उनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो भी अपने बायर्स को बताएं। दूसरा जैसे सचिन जी ने बताया,
विद शिपमेंट सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते हैं शीशम की लकड़ी को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे साइटस परमिट भी कहते हैं, कंपेरेबल डॉक्यूमेंट है वो। उसके माध्यम से भी बहुत सारे बायर्स हैं जो शिपमेंट सर्टिफिकेट देते हैं, तो दे नो दैट देयर इज सिस्टम कॉल्ड ब्रिक्स, एंड वो 183 साइटस सिग्नेटरी कंट्रीज में मान्यता प्राप्त है। अगर हमारी कोई शिपमेंट जाती है और शिपमेंट में कोई सर्टिफिकेशन को लेकर कोई चैलेंज आता है, तो वी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद साइटस मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो उस लेवल की अवेयरनेस हमने क्रिएट करेगी, लेकिन आपका कहना ठीक है, इसको हम और एग्रेसिवली मार्केट कर सकते हैं। सिर्फ जैसा कि शुरू में बताया कि EUTR कंप्लायंट आपका जो स्कीम है, आपका 10 साल से EUTR कंप्लायंट स्कीम है। अब हुआ क्या है, दे हैव गॉन वन नॉच फर्दर। एक आप स्टॉप तक अभी भी जा रहे थे, अगर आप स्कीम देखें तो आप चेन ऑफ कस्टडी में यहाँ तक तो जा ही रहे थे, तो कहाँ से आ रही है वो लकड़ी, जंगल से आ रही है कि आउटसाइड फॉरेस्ट आ रही है, कौन दे रहा है, मंडी से आ रही है, पूरी चेन ऑफ कस्टडी आप स्टैब्लिश करते थे। अब आप सिर्फ एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और वो एक स्टेप ये है आप जियो लोकेशन तक पहुँच गए। तो दैट इज द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। और ऐसा नहीं है कि द काइंड ऑफ डिजिटल लिटरेसी दैट अ कंट्री हैज, वी आर होपफुल दैट विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट सोल्यूशन, वो भी हम कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम है ब्रिक्स के साथ, पीपल एक्सेप्ट नहीं करते इंडियन से। आपको देयर इज एन इशू सर। एक चीज बताना चाहूँगा, पहली बात तो देखिए, वी आर नॉट अ ग्लोबल स्कीम एंड वी डोंट इंटेंड एंड वी डोंट इंस्पायर टू बी अ ग्लोबल स्कीम। Our scheme is very confined and limited to our handicraft sector only, and we want to keep ourselves to this. और इसीलिए हमारी जो गवर्नेंस है स्कीम की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए 1-on-1 में भी हम चाहे वो बायर है या वेंडर है या कुछ भी है, उसको सर्विस भी हम डिलीवर कर पाते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक एक सिस्टम की बात है, आप रिगार्डलेस कि कोई भी सिस्टम हो, आपको तो आज अपना बिजनेस चलाते रहने के लिए, अपने बायर का बिजनेस चलाते रहने के लिए, अपने वेंडर का बिजनेस चलाते रहने के लिए एक आपको फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए ना, कि जिस सिस्टम के ऊपर आप विश्वास कर सके, जिस सिस्टम के अंदर कोई भी लघुनाज ना हो, जिसका कोई भी डिसएडवांटेज आपके बायर को वहाँ पे किसी भी कैपिटल पनिशमेंट के रूप में आए, या आपका बिजनेस इस कंट्री से खत्म हो, या आपके वेंडर का बिजनेस इससे खत्म हो। तो आपको एक सिस्टम चाहिए, तो जिस सिस्टम में आपको विश्वास मिलता है आप उस सिस्टम में काम करिए। हम ट्रांसपेरेंटली अपना सिस्टम जो है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके बायर के सामने तैयार हैं। तो मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा, सी वी आर सेटिंग इन अ बायर्स मार्केट, बायर ड्रिवन मार्केट, बायर लीड कर रहा है आपको। हमारे देश में देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज है, हिंदुस्तानी भी है और श्रीराम भी है, MTS है, ये सब है। लेकिन आप जाते कहाँ हैं? आप इंटरटेक के पास जा रहे हैं, आप ब्यूरो वेरिटास के पास जा रहे हैं, आप एजेस के पास जा रहे हैं। हिंदुस्तानी टेस्टिंग एजेंसीज आर इक्वली गुड, दे हैव द इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज देयर विद देम, बट स्टिल आप उनके पास जा रहे हैं। यही इशू है सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब बायर ड्रिवन मार्केट में बैठे हैं, देखिए आप यू आर सप्लायर्स टू द बिगेस्ट चेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा रिटेल स्टोर है, बड़ा स्टोर है, जिसके आप सप्लायर नहीं होंगे। टारगेट, लुमिनडेज, एनीवन, यू आर बीइंग सप्लायर्स टू देम, बट यू आर जस्ट अ सप्लायर, यू आर नॉट अ ब्रांड देयर। आपका खुद का ब्रांड नहीं है, आप उसके टर्म्स को डिक्टेट करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं मूव अलाउंग, जैसे 5 years 10 years, जब आप स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जब तब मैच्योर हो जाएगा हमारा सेक्टर, तब मेरे ख्याल से आपके टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे। सर अभी प्रॉब्लम क्या है, MHSC की रिपोर्ट भी बायर नहीं मांगता, MHSC की रिपोर्ट भी बायर नहीं मांगता है, इंटरटेक की मांगता है। बस MHSC इज गुड ना, आपने देखा होगा MHSC इक्विपमेंट, हां ये दे द सेम इक्विपमेंट, हां सेम इक्विपमेंट है उनके पास, सेम सर्टिफिकेट, सेम सर्टिफिकेट, जस्ट लैक ऑफ गुडविल। सर हमें ये करना चाहिए, आप फेयर के लिए पब्लिसिटी करते हैं, ऐसे आप MHSC के लिए पब्लिसिटी करिए, ऐसे ही आप ब्रिक्स सिस्टम की पब्लिसिटी करिए, साल में 4-5 बार मेल्स जाएंगे तो कुछ ग्रेजुअली जनरेटेड। लेट्स मूव ऑन। आप हाँ अपना एक ना कभी भी थोड़ा सा गवर्निंग बॉडी टेक्निकल काउंसिल से स्टैंडर्ड्स में जो रिवीजन हुए हैं वो अप्रूव होने हैं, दैट वुड बी हैपनिंग इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। उसके बाद वी वुड बी रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट आवर सिस्टम एंड शो। तो आप अपने बाहर को दिखाई कि एक सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है, और आप इस सिस्टम के अंदर वी आर ऑलवेज रेडी टू फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्रूटनी एंड एनीबॉडी वांट्स कि भैया आप बता दीजिए
how the system is foolproof for EUDR, तो we'll demonstrate that. तो आप लोग के बायर का आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपके लिए सर्विस है, आप इसको ऐसे समझिए एंड यू इट इज़ अ ओपन मार्केट. अगर आपको कहीं और बायर को मतलब रिक्वायरमेंट है किसी और ब्रांड की या किसी और की और उसका ट्रस्ट वहाँ पे है तो इट इज़ द रिस्क दैट ही इज टेकिंग. बट जो हमने ब्रिक्स के अंदर अभी चेंजेस करे हैं और जो ब्रिक्सकॉम सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमने तो उसको बड़ा वाटर टाइट बनाया. मैं 1 मिनट का वो चाहूँगा. हमारे बीच श्री राजकुमार मल्होत्रा जी आए हैं, हमारे पास्ट चेयरमैन हैं, तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे. लो रिस्क में है तो उनका क्या ऑब्लिगेशन है ना. तो दिखने के लिए बड़ा छोटा सा ऑब्लिगेशन है बट हर कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है इंक्लूडिंग अस. वो है कि आपको इसमें जियो लोकेशन और डेट एंड टाइम ऑफ हार्वेस्ट देना है और उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ मीन्स एंड वेज विच यू कैन वेरीफाई विद सैटेलाइट इमेजरी से, गूगल इमेजरी से, ग्राउंड ट्रूथिंग से भी आप उसको देख सकते हैं कि भाई इस जियो लोकेशन से अगर ये हार्वेस्ट हुआ है इस डेट और टाइम पे हुआ है. तो फिर बाकी के जो क्राइटेरियाज है डिफॉरेस्टेशन फ्री कैसे हो रहा है, डिग्रेडेशन फ्री कैसे हो रहा है, स्पेशली अगर आपका मटीरियल ट्री आउटलेट फॉरेस्ट से आ रहा है तो सब काम आसान हो जाता है. तो कहने के लिए सिर्फ ये इतना सा डेटा प्रोवाइड करने वाली बात है लेकिन अगर यही डेटा गलत होता है तो सारी कहानी खराब होती है. और इसी डेटा की एक्यूरेसी इज द स्पिरिट ऑफ द एंटायर रेगुलेशन. तो हम किस लैंड को कंसिडर कर रहे हैं, किस लैंड को फॉरेस्ट उसको हार्वेस्टिंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन भी करते हैं, कुछ होते हैं जो फार्मर खुद रेस्ट करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग करते हैं. तो हम किस लैंड के बारे में एक्चुअली बात करेंगे. मैं उस पे है मेरे पास थोड़ा सा मैं उस पे आता हूँ. इससे कोई रिलेटेड और कुछ सर आज जियो लोकेशन की बात है, ये कौन मतलब जो स्क्रूटनर होंगे जो इंस्पेक्टर जाकर चेक करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे या फिर सिर्फ फार्मर भी करते हैं. देखिए हम अपने सिस्टम की बात करते हैं. ब्रिक्स सिस्टम में हमने इस चीज़ को कैसे लिया है, हालांकि थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे इस बात को कर ले रहा हूँ पर चलिए 2 बार भी कर सकते हो. बात को हमने जो ब्रिक्स के अंदर काम करा है हमने सबसे पहले एंड ये पूरे सेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट में ये बोलने जा रहा हूँ अभी आप लोगों को कि हमने क्या करा है. हमको क्या लगा कि मुझे क्या सिस्टम होना चाहिए जिस पे बाहर बैठे हुए आदमी को इतना ट्रस्ट हो कि वो कहे कि हाँ यार कुछ नहीं है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है और इस सिस्टम से इस फैक्ट्री से हम मार सकते. तो मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी. अब एक हम आपकी कोई भी फैक्ट्री ले लेते हैं जोधपुर जयपुर की लकड़ी का जो काम करती है तो हम इस तरीके की कुछ मॉडल फैक्ट्रीज तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर शुरू में हम एज ए ब्रिक्स जाके उनका सारा का सारा पेपर वर्क, उनकी सप्लाई चेन, उनके प्रोसेसेस को लिख के और सब कुछ तैयारी करके हम बना दे रहे हैं कि कोई भी उसको सिस्टम को आके देख सकता है. और अदर्स के लिए भी हम मतलब ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करेंगे सबके लिए. बट हर जगह पे हम 1-2 कंपनीज को हम अपने आप खुद तैयार करते हैं, उनको उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं और उनसे हम ये कमिटमेंट ले रहे हैं कि ये जो सिस्टम बन रहा है इसको आपको रिस्पेक्ट करना है. आपको ये कागज में लिखे रह के और पीछे जो है सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट टांगने से काम नहीं चलेगा. दिस सिस्टम हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. कौन सर अभी मैं आपकी बात सुनूंगा. तो उसके लिए क्या करा है कि हमने अपने स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट सेट करी जो कि ऑडिट रिक्वायरमेंट है जिसपे ऑडिटिंग एजेंसी जाके ये चेक करेगी कि वो कंपनी जो है EUDR की कंप्लायंस के लिए जिन जिन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से कंप्लाई कर रही है. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी है, बहुत सारी भी नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम में बैच अकाउंटिंग वगैरह ऑलरेडी इम्बेडेड थी. पर हम खुद ये मान रहे हैं कि भाई वो पूरी फंक्शनल नहीं थे. लोगों को ब्रिक्स से ज़्यादा अदर सिस्टम पे बिलीव था जिसमें ये फीचर्स भी नहीं थे. बट शायद अब लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ किस सिस्टम की कौन सी कंपोनेंट ऐसे हैं जो ये पूरे सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं टू कॉम्बैट विद द EUDR. तो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर
भाई उस कंपनी को सबसे पहले ये पॉलिसी एट द हाईएस्ट लेवल हैज टू बी इन प्लेस कि भाई ये जो सिस्टम है, जो मैनुअल है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो प्रोसेसेस डिफाइन करी हैं, वो इम्प्लीमेंटेड है उसके अंदर, और वो जो हम रिक्वायरमेंट्स जान रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, दिस विल मेक 100% प्रोवाइड अश्योरिटी कि उसकी करीबी परचेज थ्रू दैट सिस्टम कैन नॉट गो रॉन्ग। उसमें उसका किसी भी तरीके से, अगर आपने उससे सिर्फ डेटा भी लिया है और अपने बायर को डेटा भी प्रोवाइड करा है और आपका बायर अपने एंड पे ड्यू डिलिजेंस करना चाहता है विद इट्स ओन एक्सपर्ट एजेंसीज इन दैट कंट्री और ओन एक्सपर्ट्स, तो वो डेटा गलत कैप्चर ना कर रहा हो वो कंपनी। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोसेसेस, ये प्रोसीजर्स वी आर हैविंग इट इन प्लेस एट द फैक्ट्री लेवल। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह इतने अच्छे से होंगी, और अब जो है जैसे पहले सिस्टम में ये हुआ करता था कि मेरे को यूरोपियन यूनियन को माल सप्लाई करना है तो मेरा ये सिस्टम है, और अगर मेरे को इस कंट्री में रिक्वायरमेंट नहीं है दुबई और मिडिल ईस्ट में ये सप्लाई करना है तो मेरा सिस्टम ये है। तो मतलब एक तरफ मैंने अपना खाना खोला हुआ है अपने मन से जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी लेवरेज ही नहीं है, या तो अगर आप ब्रिक्स सर्टिफाइड हो तो सिर्फ एक सिस्टम चलेगा, दो सिस्टम का लेवरेज नहीं है आपके यहाँ कि आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लोगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लोगे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे सेपरेशन, सेग्रीगेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं, और आप डिस्क्रिमिनेट करते हो मटेरियल को भी और बायर को भी और कंट्रीज के रिक्वायरमेंट को भी, वो सिस्टम ही करते। आप या तो सर्टिफाइड हैं तो ये अश्योर्ड होगा सिस्टम के अंदर कि आपके यहाँ से ना कोई डेटा गलत कैप्चर नहीं होगा, आपकी प्रोक्योरमेंट गलत नहीं हो सकती उस सिस्टम के अंदर, और फिर आपकी चाहे वो यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपकी इंडिया में ही अगर आपका माल किसी स्टोर में जाता हो, ये पेपर फ्राई या इसमें कहीं भी जाता हो, तो वो भी एक तरीके से उतना ही कंप्लाइंट जाएगा। तो दिस इज व्हाट द सिस्टम एट द फैक्ट्री लेवल व्हिच इज गोइंग टू हैपन। तो इसकी डिटेल्स पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करे हैं स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर, जिससे ये पूरी एश्योरेंस क्रिएट होएगी, एक पूरा का पूरा उस कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्रिएट होएगा जिससे वो चाह के भी गलत नहीं जा सकते, और जिसे गलत जाना है वो फिर ब्रिक्स सर्टिफाइड नहीं रह सकता, और ब्रिक्स सर्टिफाइड हो तो गलत नहीं हो सकते। मतलब नो टू थिंग्स, नो लेवरेज, नो चांस। सेकेंडली हमने क्या करा है कि इसकी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये ओवरनाइट सब कुछ नहीं होगा। एक बार सिस्टम चालू होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको मेच्योरिटी आने में 1 से 2 साल लगेंगे, और वो थोड़ा सा उस हिसाब से मेच्योर होगी, क्योंकि उस हिसाब से डेटा भी गैदर होएगा। जब हमारे पास सफिशिएंट डेटा होगा तो उतना ही हमारे ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट जो है उतनी एक्यूरेसी से भी जाएंगे, उतना किसी भी तरीके का फर्ज होने का या कोई भी हैकी फैक्ट्री होने के चांसेस कम रहेंगे। वो सिस्टम की मेच्योरिटी के ऊपर काम करता है। तो हम इसमें 2 एप्स डेवलप कर रहे हैं, 2 प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। एक ऐप जो अभी तक क्या होता था कि हम लोगों ने अपना लिमिटेशन रखा हुआ था सिर्फ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर तक जो यूपीसीसी के मेंबर हुआ करते थे, बट यहाँ पे अब हम थोड़ा सा स्कोप को एनहांस कर रहे हैं जो मटेरियल की सप्लाई चेन में है। नाउ द हार्वेस्टर, द सेकंड इज द ट्रेडर, थर्ड इज द सॉ मिलर, फोर्थ इज द मैन्युफैक्चरर और द प्रोसेसर, है ना। जैसे कि आपने EUDR के सिस्टम में देखा है, तो आप ये मान लीजिए कि हमने 100% उसी सिस्टम को एज इट इज कॉपी करा है अपने सिस्टम के अंदर, 100% ले लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे कि कल अगर हमारी गवर्नमेंट ब्रिक्स को वहाँ पे EU में रिकग्नाइज करवा लेती है तो ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा। यहीं से सिस्टम का डाटा कैन बी ट्रांसफर टू देम, और बायर के ऊपर वो ऑब्लिगेशन भी नहीं आएगा। और ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। So one question, one suggestion. So basically, what you are saying is that BRICS is a carbon copy of the EUDR regulations. Yes, plus. But BRICS is not recognized.
रिकॉग्नाइज तो कोई भी तो सिस्टम नहीं प्रॉब्लम है। क्या हो रही है? तो यहाँ डुप्लीकेशन हो रही है एक्सपोर्टर्स को, उनको ब्रिक्स भी लेना पड़ रहा है और EUDR की भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है। देखिए वो तो बेसिकली द होल थिंग हैज टू बी डन ऑन EUDR गवर्नमेंट लेवल registration क्या है? टू ब्रिक्स रिकॉग्नाइज। EUDR की रजिस्ट्रेशन क्या है? क्योंकि यूरोपियन EUDR के अंदर कोई भी इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं है टू रिकॉग्नाइज एनी स्कीम, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की स्कीम हो, किसी कंट्री फिर की। तो एक्सपोर्टर को ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, दो चीजें करना एक ही पड़ेगा, कोई भी एक चीज करे पर उससे वो अश्योरेंस क्रिएट करे, उससे वो ट्रस्ट क्रिएट करे, जिससे बायर जो है विदाउट एनी फियर अपना ऑर्डर उसके यहाँ प्लेस कर सके। अब वो आपको किस सिस्टम में मिलती है वो बात है, बट आप जो EUDR के रजिस्ट्रेशन की कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई सिस्टम है और आगे की बात कर रहे हैं, बट इन्होंने बोला है तो मैं नहीं वो ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट का आप देखिए ना, आपकी बनाई हुई ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट इज नॉट समथिंग, ना तो आप उनके यूरोपियन यूनियन के सिस्टम के अंदर, ना तो आपकी कोई अथॉरिटी है, वो तो आपको डेटा देना है, चाहे आपको इंफॉर्मेशन ये एक कागज पे लिख के, एक ईमेल पे लिख के उसको दे दें अपने बायर को। अल्टीमेटली आपके बायर को ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट को अपलोड करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने यूरोपियन सिस्टम पे अपलोड करना है, और वहां से उसको एक बैच नंबर मिलता है, एक रेफरेंस नंबर मिलता है, विच इज यूनिक इन इटसेल्फ, विच इज गोइंग टू बी देयर इन द एंटायर सप्लाई चेन, है ना। तो आपको तो इंफॉर्मेशन देनी है, अब उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे दे सकते हो? एक भाई आप एक अच्छी ऑर्गेनाइज वो है, आप छोड़ दीजिए आप सर्टिफाइड है या नहीं है, आप FSC या PFC सर्टिफाइड है, आप ये भी छोड़ दीजिए, आपके अपने अच्छे प्रोसेसेस लेट डाउन हैं, आपने आप जियोलोकेशन भी दे पा रहे हैं, करेक्ट, आप डेट एंड टाइम भी हार्वेस्ट दे पा रहे हैं, आप उसका कन्वर्जन फैक्टर, ये वो सारी चीज़ें आप जो भी चाहिए उस सिस्टम में अपलोड होने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप एक ईमेल से अपने बायर को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आपका बायर अब चाहेगा तो उस पर ड्यू डिलिजेंस करेगा, एक बार और वेरीफाई करेगा, और अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट से उस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे अपलोड करके अपना काम चला लेगा। EUDR, you don't get a certificate saying that you are EUDR certified. नहीं, It's just a set of processes that you have Yes. to do. It's just a set of processes you have to do. I have a question. Is it on all the woods or only specific? दोनों है, नॉट ओनली वुड, कोको, कॉफी, केटल, अब केटल की बात करूँ तो लेदर, और रबर की बात करूँ तो आपकी लकड़ी की कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे से जो रबर के हुक्के लगते हैं वो भी। Is the paper? पेपर प्रिंटेड वाले को एक्सेप्शन दी है कुछ, बट आई थिंक स्टेशनरी और एनी अदर पेपर लाइक टिश्यू और अदर पेपर्स आते हैं। So all What photo about are MDF and HDF? हाँ MDF Paper is made of- हाँ वो भी MDF, HDF, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, जितने भी आपकी कंपोजिट वुड पैनल्स हैं, all forms of wood, processed or unprocessed. हाँ जी, प्रोसेस इंडिया से तो खैर अनप्रोसेस में जाते ही नहीं, प्रोसेस फॉर्म। For all the items, we need to have a document list. Chain of them. How do you get it for the recycled wood, sir? Recycle is exempted. So the wood we take out from the houses, those are recycled, so those are exempted. हाँ, that is exempted. Recycle. Everything is recycled. Reclaim. Yeah, the reclaimed rubber, sir. हाँ, ये वो तो exempted है। HS code will determine whether you are इसके साथ MDF भी है. नहीं, जितने भी एक फर्नीचर की केवल मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लें, अच्छा करिए ये वाली बात बिल्कुल उस तरीके की एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, तो ये जो DDS वाली हम बात करते हैं ना, सचिन जी 1 मिनट में लेना चाहूँगा। ठीक है, कोटा हो सकता है कि ये लोग मीटिंग रहते हैं, अगर मैं ठीक समझा हूँ तो अभी हम क्या करते हैं, ऑर्डर मिला हमने माल बनाना शुरू करा, उसके लिए फिर हमने टेस्टिंग वगैरह करवाई जो भी होती है, उसके बाद बाइंग हाउस या बाइंग एजेंट या बायर का वो इंस्पेक्शन करेगा, तब तक हम इससे होते हैं कि जाएगा माल नहीं। अब एक चीज़ और आ गई कि आप इसको आप अपलोड करो सारे अपने उसको जो भी आप बता रहे हैं
अब वहाँ से ओके हुआ या नहीं तो इसे वेरी रिस्की ना हो। तो हमें मतलब समझे ना ये एक्सपोर्टर। तो ये है कि आपका माल तैयार है, अगर सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो जाएगा, नहीं तो आप टेबल फूट के रखो। मैं बताऊं आपको इसमें जो राजकुमार जी कह रहे हैं सब वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक्सपोर्टर मैं एक बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे बाइंग एरिया से बाइंग उनके लिए तो इससे काइंड ऑफ क्लास जो समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है या करवाना है, तो जिन्होंने करना है उनके लिए तो एक और थर्मामीटर लग गया ना ये आपका टाइम। तो अब मैं बायर अचानक मांगता है जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, ऐसा होगा। अगर आपने माल बायर ने ऑर्डर दे दिया, आपने तैयार कर लिया और आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी जो सामने दिख रही है वो इंफॉर्मेशन दे दी, और वो इंफॉर्मेशन जब उसने वेरीफाई कराई या जो करा वो गलत निकली, तो गुड्स प्लेस नहीं होंगे, फिर उस मार्केट में शिपमेंट की जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या इसका क्या है, जैसे हम सोचते हुए आ रहे हैं, तो ये होगा जो ब्रिज के सिस्टम के अंदर हम लेके आ रहे हैं, हम दो तरीके की ऐप लेके आ रहे हैं। वो इसलिए बीच में मेरी बात को एक कंसिस्टेंसी में जाने दीजिएगा, क्वेश्चन अभी हम बाद में लेंगे ना। तो सोल्यूशन में क्या है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री लेवल पे, प्रीमाइसेस लेवल पे, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर ये कुछ प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन है, जिससे हमको ये लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद वो फैक्ट्री विल नॉट गो रॉन्ग, कांट गो रॉन्ग until unless he is respecting those processes. Secondly, हम दो एप्स के साथ आ रहे हैं। वो एप्स क्या है, वो सप्लाई चेन में हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टर कौन हो सकता है, दो लोग हो सकते हैं हार्वेस्टर इंडिया में। एक ट्री ऑफसेट फॉरेस्ट की उसमें देखें जहाँ से हमारे इंडस्ट्री के अंदर 85% ऑफ द रॉ मटेरियल कम्स, है ना, जो हम बोलते हैं किसान के यहाँ से, या मैंगो आता है आपका ऑर्चर्ड से आता है, या शीशम या वो आता है ट्री ऑफसेट फॉरेस्ट, है ना। तो एक सोर्स वो है, तो जो वहाँ पे हार्वेस्टर है ना, तो हम उस हार्वेस्टर को समझते हैं कि वो या तो फार्मर है जिसने अपनी फील्ड पे उस माल को लगाया है ना, या फिर वो ट्रेडर है जो उस फार्मर से माल खरीदना चाहता है और आगे काट के ले जाना चाहता है, सप्लाई चेन में देना चाहता है। तो वो चारों के चार लोग इसमें सप्लाई चेन में कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन, लाइक सच इंफॉर्मेशन, सम मोर इंफॉर्मेशन, एंड वो हमारे यहाँ सीधा अपनी ऐप से ट्रांसमिट करेगा उस डेटा को, और उस डेटा में हमारी टीम उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे बैठे करेगी। और वो जैसे जियो लोकेशन करना है तो हो सकता है वो सैटेलाइट इमेजरी से करें, हो सकता है लीगैलिटी हमको उसकी चेक करनी है तो उस पर पेपर ट्रेल से करें, क्योंकि हम इस काम को करते हुए आ रहे हैं। हम पिछले जब से हमने शिपमेंट सर्टिफिकेट देने शुरू करे हैं, तो इस तरीके की सप्लाई चेन को देखना, समझना और उसके ऊपर इस तरीके की सर्टिफिकेट को इशू करना हम लोगों की काफी प्रिपेयर्डनेस है ऑलरेडी, और उसी लाइन पे हमने सिस्टम को तैयार करा है। तो उसको क्या होगा, एक बैच नंबर मिल जाएगा। ये बैच जो है हार्वेस्टर एट फर्स्ट पॉइंट किसान भी अपना करा सकता है, और वो इंटर सप्लाई चेन में चलता रहेगा आगे, फिर किसी को ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार होगी। और उस बैच को हमने भी एक यूनिक नंबर दे दिया, जो रेफरेंस नंबर आप उसकी बात कर रहे हैं, जो आपको EUDR की रजिस्ट्री देती है। तो इट इज सिमिलर बट मोर रोबस्ट सिस्टम दैट वी हैव अडॉप्टेड एंड व्हाट वी आर डेवलपिंग करंटली, है ना। अच्छा, तो वो बैच नंबर किसान ले ले, ट्रेडर ले ले, या सॉ मिलर ले ले, या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ले ले, सबके पास वो प्रेफरेंस रहेगी कि वो पर अब मैन्युफैक्चरर अगर लेगा, एक्सपोर्टर लेगा, तो उसे सॉ मिलर का डेटा भी देना पड़ेगा। यहाँ पे सॉ मिलर लेगा तो उसे अपने 2 स्टेज का डेटा देना पड़ेगा। पर वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डेटा कैप्चर भी कर सकता है और वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, और उसके बाद उसे कुछ नहीं करना है। वो हम ही जब उसको रेफरेंस नंबर हम जब वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये बैच सही जियो लोकेशन दिखा रहा है, सही स्पीशीज बता रहा है, सही क्वांटिटी बता रहा है, सही उसका जो कन्वर्जन फैक्टर्स है वो बता रहा है, तो ये इतना रोबस्ट सिस्टम जो है हम तैयार कर रहे हैं। ये आपका बाहर जब देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ भाई दिस इज द सिस्टम, दिस इज व्हाट वी वांट, और इसके बाद मेरे को
कोई ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सैम्पलिंग बेस पे इसके बाद अपना करना भी चाहता है तो वो करता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा। तो हमारा ये 3 पार्ट में ये सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो ये हम बैच को वेरीफाई कर देंगे किसी भी स्टेज पे, और एक बार वंस दैट बैच इज वेरीफाइड, उसके बाद उस बैच के कितने भी ऑफशूट, कितनी भी सप्लाई चेन में कहीं से भी चले जाए, जो भी आदमी उस सप्लाई चेन में जिसमें यूडीआर चाहिए, उस इनवॉइस को उसी सिस्टम से वैलिडेट करवा सकता है, उसी ऐप से, और उसको एक क्यूआर कोड लेवल जनरेटर के थ्रू उस पर मिल जाएगा। और उसके अंदर उस कोड को जब आप ट्रैक करेंगे तो यू कैन फाइंड दी इवन 50 जियो लोकेशन। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 50 जियो लोकेशन का माल लगा हुआ है, मतलब एक टेबल थी, उसमें रबर की गुटके भी लगे हुए थे, उसमें MDF का पीछे वो बोर्ड भी लगा हुआ था, उसके साथ एक कुर्सी थी जिसपे लेदर लगा हुआ भी था, है ना। तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर वो 50 जियो लोकेशन से भी आए हुए हैं तो वो एक क्यूआर कोड के द्वारा उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि हमारी रजिस्ट्री पे बाहर जाके डायरेक्टली दे सकता है। उसमें एज ए वेंडर सेकेंड पार्टी का इंफॉर्मेशन पे भी उसको रिलाय करने की जरूरत नहीं है। बट बाहर जब सेकेंड पार्टी यानी वो वेंडर के यहाँ जाके उसकी प्रीमाइसेस में वो मैनेजमेंट सिस्टम देखेगा और उस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, तो उसको वहाँ पे वो ट्रस्ट बिल्ड होएगा। जिस ट्रस्ट को बिल्ड होने पे शायद ये वाली सिचुएशन ना आए कि मेरा माल तो तैयार हो गया, आगे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा तेरे यहाँ सिस्टम है, ये सिस्टम गलत हो ही नहीं सकता है, ये ऑर्डर पकड़, अब तो रिक्वायरमेंट कर रहे। लेकिन अगर सिस्टम में इतना ही वाटर टाइटनेस नहीं है और वो विदाउट लकुनास नहीं है वो सिस्टम, तो ये डेफिसिट रहेगा ट्रस्ट का। तो फिर बायर हमेशा ये बोल सकता है कि यार पहले जिस बैच से आपने मेरा माल बना के देना है, उस बैच का मेरे को डिटेल दे दो, मैं अपने सिस्टम पे देख लेता हूँ, मेरे को यूनिक नंबर मिल जाता है, वो गुड्स मेरे यहाँ प्लेस हो सकते हैं, तो मैं आपको ऑर्डर कर दूँगा। आई थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, ना उसके बारे में सुना है, और वी आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम। So अब मानिए कि मिड ऑफ अक्टूबर आई थिंक मेरी पोजीशन को लॉन्च, उससे पहले हम लोग मार्केट टेस्टिंग अभी चल रही है जो 15 सितंबर को खत्म हुई, उसमें वी आर टेकिंग। अब देखिए चैलेंज क्या था, मैं यहाँ से आगे चलूँ तो थोड़ा सा आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दी, बट स्टिल ये सिचुएशन अगर इन दी कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, मेड इन ब्राजील में क्या है कि कैटल रेजिंग के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं और डिफॉरेस्टेशन करके फिर वो कैटल रेजिंग के लिए, कैटल कीपिंग करने के लिए, तो अब कैटल का मीट मैं नहीं खाऊंगा अगर उस कैटल को रखने के लिए आपने 2020 के बाद कोई फॉरेस्ट को क्लियर कट करा है और दूसरे काम में लाया है, या उसको कॉफी लगाई है तो कॉफी नहीं पीऊंगा मैं आपकी। आपने अगर वहाँ पे जानवर को पाला है ना, तो मैं वो जानवर का मीट और उसका लेदर, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं करूँगा। ये है रेगुलेशन। तो वो हमारे इतना वो नहीं है, बट फिर भी उसका वो तो चाहिए, क्या कहते हैं, प्रूफ तो चाहिए कि ये कैसे होगा। तो अभी क्या है, जैसे जो नेगोशिएशन स्टेजेस पे है ना, अब मान लीजिए जो लोग FSC से वाकिफ है उनको मालूम होगा कि उसमें क्या होता था कि 5% की एक्सेप्शंस मिली हुई थी। मान लो आपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर बनाया है, उसमें नॉब्स लगाई हुई हैं, वो नॉब्स कोई ऐसी लकड़ी की लगी हुई है जिसका सर्टिफिकेशन वो सर्टिफाइड हो, शायद अभी, क्योंकि इवन EUDR के अंदर भी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, इंटरनली के बहुत चल रहे हैं, कंट्री के लेवल पे, इंटरनेशनली बहुत चल रहे हैं। तो ये भी चल रहा है कि भाई इस तरीके के जो छोटे प्रोडक्ट हैं तो उनको कितने % के वॉल्यूम तक एग्जम्पशन मिले, और अगर नहीं मिलेगी पर हम अपने भविष्य के सिस्टम में उसको लेके चल रहे हैं कि अगर नहीं मिलती है तो आपकी वो टेबल रुकेगी नहीं, जिस टेबल के अंदर वो रबर की गुटके भी रुकेगी। 10% सप्लाई आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पब्लिक फॉरेस्ट है वहाँ से आती है। तो उन लोगों का जो हार्वेस्टिंग करने का प्रोविजंस हैं और जो जिस तरीके की रिकॉर्ड कीपिंग है, उसमें उनको जियो लोकेशन को ऐड करना सिर्फ एक दिन का काम है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से एक DO लेटर चले जाता है टू ऑल द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कि जितने भी हार्वेस्ट होनी है फ्रॉम दिस स्टेट, दे विल आल्सो कीप हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ द जियो लोकेशन।
प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ दैट 5% सप्लाई चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करनी है और वो आप सही प्रोवाइड कर देते हैं तो लीगैलिटी तो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं है, वो EU के आंदोलन करते भी आ रहे हैं। तो बाय सेइंग दिस कि हर एक बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली है, पर जितनी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं और जितनी प्रिपरेशन खाली ये EPCH के हाथ की बात नहीं है ना, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू गेट इन्वॉल्व फुली, क्योंकि अगर 100 मिलर के लाइसेंसेस रिन्यू नहीं हो रहे हैं तो वो तो EPCH नहीं कर सकते, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट को करना होगा, तो गवर्नमेंट को समझना होगा। और गवर्नमेंट का अभी का स्टैंड तो ये है कि वी एज ए कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द EUDR। वो तो हम लोग अपना प्रोएक्टिवली काम को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं कि कल कोई भी सिचुएशन आ सकती है, अगर आती है तो कम से कम हम कोई ट्रेड को कुछ तो हेल्प कर सकते। तो ओनर्स इज नॉट कंप्लीटली ऑन अस, हम तो अगर नहीं भी करें एज ए ट्रेड एज ए बिजनेस, दिस इज योर ओनर्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट, टू गेट द जियो लोकेशन। आप जियो लोकेशन नहीं लाएंगे तो आपको कोई माल खरीदेगा नहीं, और वो जियो लोकेशन सही नहीं निकलेगी तो वो जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा उस टेबल पर खुद ही बैठिएगा, वो तो नहीं होगी एक्सपोर्ट, कोई भी नहीं प्लेस करेगा उसे अपनी कंट्री में। तो व्हाट वी डूइंग इज ऑल वॉलंटरी करंटली, मतलब और काफी आगे स्टेज पे हम जा भी चुके हैं। अब आपके यहाँ से आना शुरू, अभी तो इवन बायर्स ऑफ 12 कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन आर स्ट्रगलिंग एंड डिफेंडिंग कि भैया वी डोंट वांट दिस सिस्टम, अमेरिका चाइना सेइंग वी डोंट वांट दिस सिस्टम। तो बहुत ज्यादा वो है, हम तो फिर भी बहुत आगे लेवल का काम आगे और करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आज भी तो कल अगर डिफर भी होता है ये पूरा रेगुलेशन तो साल भर के लिए 2 साल के लिए डिफर हो जाएगा, बट सिचुएशन विल अराइज अगेन। तो क्या ये पॉसिबल है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगर एक गवर्नमेंट लेवल पे या काउंसिल के लेवल पे एक जगह पे भाई आप यहाँ से खरीद लो, उनका काम है सारी चेन को मैं मॉनिटर करना, हमने वहाँ से खरीद लिया तो हमने उन्होंने हमारे को सर्टिफाई कर दिया कि आपने ये वो हमारे से खरीद लिया, उसके बाद हमारा काम कर उस काउंसिल का या गवर्नमेंट का ये काम हो बाकी चेन को खुद करके। एक मान लो हमने एक राशन की दुकान से लेकर खरीद ली, तो राशन वहाँ कैसे पहुँचा है वो उनका काम, तो इट इज वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इस तभी तो सारे छोटे मोटे एक्सपोर्टर काम करते हैं, कैसे कह रहे कि कहाँ से आई, इसको क्या हुआ, तो आई थिंक थोड़ा अभी तक इसको टाइम लग जाएगा। जो हमने सिस्टम को डेवलप करा है, जो स्टैंडर्ड में चेंज करे हैं, उनमें हमने इन 3 क्राइटेरिया को फुली इनकॉर्पोरेट कर लिया है। Now our standard is totally embedded with all the requirements that is on the operator and traders. Maybe this requirement is at the EUDR, at the European Union trade entities level, but we have incorporated everything for your suppliers also here in India. ये जो आप पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं ना, जिसमें एक EUDR बोल रहा है एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स, तो अब मानिए ये चीज हमने तैयार कर दी है। अब डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स के ना देखिए हर कंट्री में और एक कंट्री के अंदर डिफरेंट रीजन्स में भी डिफरेंट तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मान लीजिए ये आपकी बुलेट ट्रेन जा रही है अहमदाबाद से मुंबई, तो ये जितने एरिया से जा रही है और जहाँ पे वो नोटिफाइड फॉरेस्ट आ रहे हैं, चाहे रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया या किसी भी तरीके का फॉरेस्ट है, अगर वहाँ पे किसी तरीके का कटान हुआ है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और वो लकड़ी आके किसी डिपो के थ्रू बिकती है मार्केट में, तो वो EU में नहीं जा सकती, उसको वो डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। एक बात। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन अगर आपने किसी फॉरेस्ट को डाइवर्ट करा है फॉर एनी अदर एप्लीकेशन, जनरली 90% ऑफ द फॉरेस्ट आर डाइवर्टेड फॉर एग्रीकल्चर ओनली, बट इट इज नॉट द केस सिनेरियो इन इंडिया। And also, 85% of our raw material supply to the industry comes from the tree outside forest. It is not coming from the forest.
बट एक एग्जाम्पल तो मैंने डिफॉरेस्टेशन का आपको वो दिया कि जो भी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट है ऑफ एनी टाइप है ना, उससे हाईली लकड़ी विल नॉट गो टू यूरोपियन यूनियन. So deforestation is not a big challenge for us here in India क्योंकि हमारा 85% जो है फार्मर के यहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे कोई फॉरेस्ट मतलब कन्वर्जन नहीं होता फॉरेस्ट का नोटिफाइड फॉरेस्ट. तो हमारा जो वो we are very safe in that manner, no हमारे 2020 से के बाद कोई भी डाइवर्जन हुआ है और वो डाइवर्जन होने के बाद वो लकड़ी किसी डिपो में आ गई और उस डिपो से आपकी सप्लाई चेन में अगर आती है, तो जब आपको सिस्टम प्रोसीजर जो हमने बनाए हैं हर कंपनी के लिए मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो उसको देखेगा कि भाई मेरे पास ये लकड़ी वहाँ से तो नहीं आ गई, कोई डाइवर्टेड फॉरेस्ट से तो नहीं आ गई है, तो उसको नहीं खरीद सकता वो, और उसको ना वो खरीद पाएगा और वही बायर की सप्लाई चेन में मिल जाएगी. तो वो अश्योरेंस हमारे सिस्टम और प्रोसीजर्स कर रहे हैं. सो दिस इज आप देखना चाहिए, देखिए सर ये है कन्वर्जन. अब फॉरेस्ट की भी हमारी अपनी फॉरेस्ट की डेफिनेशन है और उनकी अपनी फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, जिसमें ये देखिए प्राइमरी फॉरेस्ट, नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, प्लांटेड फॉरेस्ट और प्लांटेशन फॉरेस्ट. पहली बात तो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है ना, उसका कन्वर्जन इनटू लाइट ग्रीन इज आल्सो कन्वर्जन, और वो लाइट ग्रीन एंड ऑल द डार्क ग्रीन का कन्वर्जन थ्रू दैट रेड एरो इनटू द बोथ एग्रीकल्चर प्लांटेशन एंड द एग्रीकल्चर यूज इज आल्सो सपोज्ड टू बी कन्वर्जन. तो अब क्या है कि आपके वेंडर को समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन है क्या, डिफॉरेस्टेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन है क्या, तभी वो समझ के उस तरीके की प्रिक्योरमेंट कर पाएगा. नहीं तो वो वही गड़बड़ कर देगा कि उसे पता नहीं है, वो तो सोच रहा है मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंडिया से लकड़ी लेके आ रहा हूँ और यहाँ की लकड़ी तो सारी लीगल है, पर वो तो उसे ये नहीं पता कि ये वाली लकड़ी उस सप्लाई चेन में नहीं जा सकती है जो यूरोपियन यूनियन में. तो ये प्रिपरेशन हमारी जो है हम करवा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को इंडिया में, और जो सप्लाई चेन. अब ये कंट्री स्पेसिफिक है. अब मलेशिया इंडोनेशिया में चले जाइए, वहाँ पे आज भी गवर्नमेंट जो है कंसेशंस देती है ऑफ देयर प्राइमरी फॉरेस्ट टू द इंडस्ट्रीज, जहाँ पे क्लियर फेलिंग होती है. अब वो वाला यूरोपियन यूनियन में नहीं जा सकता है वो वाला माल किसी भी तरीके से. ऐसे ही हमारा कौन सा जा सकता है कौन सा नहीं जा सकता है, वो हमको डिफाइन करना हमें पता होना चाहिए. अब वो बायर को भी वहाँ पे नहीं पता होगा, इसलिए हम लोगों का इंटरवेंशन इनटू द एंटायर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट वी आर डूइंग. ये आया सर डिग्रेडेशन. दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द, आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है वो डिग्रेडेशन फ्री भी होना चाहिए. अब जहाँ पे फिर जितना हमारा TOF के रिसोर्सेज से मटेरियल आता है 85% सप्लाई चेन, तो उसमें डिग्रेडेशन का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो फॉरेस्ट ही नहीं है. तो जो फॉरेस्ट ही नहीं है तो डिग्रेडेशन किस बात का हुआ. तो ये वाला क्राइटेरिया नल एंड वॉइड हो जाता है उसके लिए. लेकिन ये अगर 5% माल हमारा उससे आ रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली सप्लाई से आ रहा है, तो अब जितना डेजर्टिफिकेशन में हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिखाया हुआ है जो फॉरेस्ट, अब वो फॉरेस्ट कंसिडर होता है कंपार्टमेंट लेवल पे, रेंज लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, फिर सर्कल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे. तो अब ये इस बात की क्लैरिटी हमें भी नहीं पता है और यूरोपियन यूनियन को भी नहीं मालूम है कि अगर एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक सर्कल की डिग्रेड हो रही है, मतलब डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, या डेंस फॉरेस्ट जो है मॉडरेट या ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका किसी भी तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, तो क्या उस पूरे सर्कल की लकड़ी नहीं जा सकती है सप्लाई चेन में, या खाली कुछ डिवीजन की नहीं जा सकती है, या उस कंपार्टमेंट की नहीं जा सकती है. तो ये हम तो सोच पा रहे हैं, अभी यूरोपियन यूनियन को तो अपना ही चल रहा है, वो तो नहीं सोच पाएंगे हमारे बारे में, लेकिन हमारे बारे में सोचने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सोच पा रही है इस बात को कि हमें क्या सोचना है, पर हम सोच पा रहे हैं. हम अपने सिस्टम के अंदर सारी चीज़ों को तैयारी लेके चल रहे हैं.
अब ये सर क्राइटेरिया 2 है, ये जिसको हम लीगैलिटी वाला क्राइटेरिया बोलते हैं EUDR का। तो अब इसको भी मैं मतलब सिंप्लीफाई भी करके बताऊं आपको, और कॉम्प्लिकेशन क्या है वो भी बता देता हूँ। सिंप्लीफाइड यही है कि अगेन आप 85% ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई कम्स फ्रॉम द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, और ये जितनी चीज़ों की यहाँ पे डिमांड कर रहा है ये पब्लिक फॉरेस्ट से कर रहा है, और वो पब्लिक फॉरेस्ट में जो भी आदमी यानी गवर्नमेंट के फॉरेस्ट से माल ले रहा है उसको ये चीज़ें अपनी सप्लाई चेन के अंदर इंश्योर करनी पड़ेगी अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले रहा है। और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर से ले रहा है तो ये रेगुलेशन, ये क्राइटेरिया उतना इंटेंसली एप्लीकेबल नहीं होता है। पर ये किसको पता होना चाहिए? प्रोक्योरमेंट करने वाले आदमी को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उस कंपनी के लिए इस लकड़ी के बैच की और लॉट की प्रोक्योरमेंट है। तो फिर आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है। हमारे वृक्ष के सिस्टम के अंदर ये जो भी सारी चीज़ें हैं सब ऑप्शनल है, और हमारा यही मानना है कि ये हमारा सिस्टम 2, 3, 4, 5 साल जब तक आपको ज़रूरत है तब तक वहाँ पे रहेगा। उसके बाद भी वांट कि द एंटायर इकोसिस्टम इज डेवलप्ड इन सच अ मैनर कि सप्लाई चेन अपना पूरी रोबस्ट हो गई है, उसमें ज़रूरत नहीं है इस तरीके के डेटा के फ्लो की और ड्यू डिलिजेंस करने की। और ये वही जो पिक्चर्स दिखाई थी वो उसी के ये 8 पॉइंट्स हैं, ये हम EUDR के अंदर भी कन्वर्ट करते रहे। तो आप जो वो FSC की बात करते हैं, दे आर ओनली लिमिटेड टू दिस and giving you or may giving you the assurance on these 8 factors. This is also embedded in their standard. But geolocation and all that stuff, batch wise accounting, ये सारी चीजें अभी किसी सिस्टम में मैंने नहीं देखी हैं और है भी नहीं, और होता भी है तो कंसाइनमेंट बेसिस पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका उस काम को करना। अल्टीमेटली द फाइनल टूल वुड बी वृक्ष। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। कल कुछ और होता है, अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग सोल्यूशन बना के आपके पास आती हैं, बताती हैं, हो ही रहा है वो चारों तरफ मैं देख ही रहा हूँ। ये हमने बात कर ली है मैंडेटरी स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस। इसी के लिए वी आर प्रिपेयरिंग द कंपनीज इन इंडिया मेड चेंजेस इनटू आवर स्टैंडर्ड एंड सेटिंग अप फ्यू मॉडल कंपनी जिनको आपके बायर्स आके देख सकते हैं, उनके सिस्टम देख सकते हैं, एंड देन दे कैन ऑप्ट फॉर वृक्ष एज अ प्रोग्राम फॉर देयर प्रोग्राम। तो एक ड्यू डिलिजेंस करने का प्रोसेस ये बता रहा है क्या है। आपको सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जिन द जियो लोकेशन, डेट, टाइम ऑफ हार्वेस्ट, किस किसान का था, उसकी लीगल ज़मीन थी नहीं थी, जो भी डेटा कलेक्ट करके फिर उसमें रिस्क देखना है कि अगर रिस्क है तो फिर किस तरीके से आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। उस तरीके की मेजर्स आपके रिटर्न प्रोसीजर्स में होने चाहिए कि अब आपको तो पता नहीं है किस तरीके का रिस्क आ गया। अगर वो रिस्क आ गया आपके सप्लाई चेन में तो क्या करेंगे? धंधा छोड़ देंगे? नहीं, आप उस रिस्क को मिटिगेट करेंगे। तो कैसे मिटिगेट करेंगे? ये तैयारी हम करवा रहे हैं लोगों की, उनको इस लेवल पे ला रहे हैं कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और रिस्क को मिटिगेट करें। एक प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन की क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये हमारी ऐप में ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हुई और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो ऑटोमेटिक वैल्यूज खुद दे लेगा। जो लोगों का बिजनेस है इंपोर्ट करके वुड और जहाँ पे वैल्यू एडिशन करके उसके आइटम्स बना के और एक्सपोर्ट करने के लिए, तो दे ऑल्सो हैव टू हैव वो सिस्टम इन प्लेस इन राइटिंग ऑल द प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स। ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए ना बार बार जाना पड़ता है, उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे भी सिस्टम है, बट उसका बेटर एम्प्लॉय सिस्टम है कि आप उसी ऐप से अपनी किसी इन्वॉइस से आपके माल आगे भेजना है और सामने वाले की रिक्वायरमेंट देनी होगी आगे, और वो करेगा तो उसको एक लेबल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे अपने आप में, वो उस पर लगाएगा और माल भेजेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड फीस अगेन एंड अगेन।
यहाँ पे फीस का सिर्फ एक ही बात है, जब उसको बैच अकाउंटिंग का वेरिफिकेशन कराना बस, अदरवाइज सिस्टम में कहीं फीस का ज़्यादा नहीं है। और जो लोग अपना वृक्ष का सर्टिफाई होंगे, ये जो भी अपने एनुअल और या हाफिली सर्विस हो, तो दैट इज सिस्टम इज इट। देखिए आप जैसे कोई एग्जांपल दीजिए तो मैं आपको क्लोजली बता पाऊंगा या मैं पिकअप करूँगी। आप पाइन है मान लीजिए, कहाँ से आ रही है? कनाडा से आ रही है मान लीजिए। आपने एक कंटेनर पाइन खरीदा, तो आप सिंपल वही बोलेंगे उससे कि भाई मेरे को जियो लोकेशन दे दीजिए, डेट एंड टाइम और हार्वेस्ट दे दीजिए, देना ही पड़ेगा वो। नहीं तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होगी नहीं, तो आपको जब अपना माल बेचना है उससे लैब बना के, तो वो तो मांगेगा ना तुरंत मिनट वाला। पाइन एमडीएफ ही इंपोर्ट की, बट जिस फैक्ट्री ने पाइन की वो एमडीएफ बनाई उसको भी जियो लोकेशन नहीं पता। वी हैव चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट, वी हैव इंपोर्टर ने बिल ऑफ लेडिंग भी दे दिया, वो सब कुछ दे दिया। जाते हैं सर, जियो लोकेशन मैं जाऊँगा सैटेलाइट पे देखूंगा कि हाँ भाई इसने डेट ऑफ टाइम हार्वेस्ट ये बताया है, इस तारीख को बताया है, यहाँ पे इतना माल था नहीं था, मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो स्पीशीज भी बता देगा, सब कुछ बता देगा। नहीं था तो बीच से भी आया, मैं नहीं रुका। सर जिस कंपनी ने एमडीएफ बनाई है, जब वही जियो लोकेशन नहीं दे रही, तो इंपोर्टर कैसे देगा और फिर मैं कैसे दूंगा? कोई भी नहीं दे पाएगा, दे ही नहीं पाएगा, दे ही नहीं पाएगा। तो जो नहीं दे पाएगा उसका माल ही नहीं जाएगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बिना तो माल जाएगी। उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? सर एक जो हमारा अब चाहिए होगा हमको चाहिए ही होगा, तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर सर कोई तरीका प्री वेरिफिकेशन का, अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट की बात जो करें, बैच वो प्री वेरिफिकेशन ही है, वो बेसिकली प्री शिपमेंट वेरिफिकेशन ही है, जिसको हम बैच का वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। हमें इंडिया से माल एक्सपोर्ट करना है बाहर, ठीक है, तो जो वुड यूज हुई है उसको पहले प्री वेरीफाई करा रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने जिसमें बैच नंबर है वो जो बैच वेरीफाई करवा लिया ना, तो वो बैच आपको हमारी रजिस्ट्री पे भी दिखेगा, ईपीसीएच के वृक्ष की रजिस्ट्री पे भी आपका बायर डायरेक्ट उसको वहाँ पे भी देख सकता है, उससे पर्टेनिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी उसको दिख जाएगी। तो अब वो आपको अगर वो पोजीशन में है आपकी, कि आपकी सप्लाई चेन की पोजीशन में है वो बैच, और आपको वो बोलते हैं कि इस बैच से आपको माल बना के दूंगा, तो हो जाएगा काम। तो पहले सप्लायर को तो सर पहले बैच का ही अप्रूवल लेना चाहिए। वो देखो शुरू में वो ही मांगेगा, जब तक आपको वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे अपने बायर के साथ, वो सारी चीजें नहीं दिखा पाएंगे, वो मेच्योरिटी जब तक पूरे सिस्टम में नहीं आएगी तब तक वो मांगेगा सर। पहले सप्लायर को करना चाहिए, हाँ, पहले और बैच वही चीज़ की हमने तैयारी करी है, वही हमने करा है। प्री शिपमेंट बैच जो है आप अप्रूव करवा के रख सकते हैं अपनी सप्लाई चेन में, कि ये है, इससे मैं माल बना के आपको। ऐसा कोई चांस है कि जो सप्लाई चेन आपको भी एक ही बैच का दिखा रहे हैं और किसी और को भी दे रहे हैं, तो उस केस में बहुत कॉम्पिटिशन बिठा के देखे, अभी तक हमें नहीं लगा कि हमारे इसको भी तोड़ सकता हाँ। है, बट जिस दिन कोई बैच बना तो उसका जो cover भी है, किसी केस में बायर प्रदान को मना कर कोई ना कोई तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट और सब जॉट डाउन कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, मतलब कि ये सारी चीज़ों को कंप्लाइंस देखी कि वो कंपनी जिसको हम तैयार करेंगे, और उसी से बायर को अश्योरेंस मिलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ वो इस तरीके से इस मेथड से ही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो वे कि illegal wood or any other wood with wrong data can enter into their premises. बैच वेरीफाइड बैच क्रिएट होकर रहेंगे ना, तो ये अपने आप में ये विजिबल रहेंगे टू द पब्लिक, जिनको ये पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टैंडिंग बेचना चाहता है, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो आप उसके पास पहुँच सकते हैं, या किसी ने खरीदा हुआ है उसका बैच है, तो ये विजिबिलिटी अक्रॉस द सप्लाई चेन पब्लिकली ओपन होएगी, जिससे ये आसान हो जाएगा काम कि कहाँ पे, एंड दिस विल आल्सो वर्क एज अ रॉ मटेरियल बैक, जो आप कहना चाहते हैं वर्चुअली। I have FSC and I have REACH certificate. We maintain all paperwork, everything. जो my major consumption is MDF. So when we procure MDF from
either some we import directly or from distributors here, importers here, Exim Corp है, Associated वाले हैं. जब हम FSC certified MDF मांगते हैं, we get from them and we maintain the paperwork. But they are not at this moment able to give the geolocation and EUDR. Can you provide some MDF supplier in India who can give the geolocation, rest everything? यहाँ पे हम खड़े हैं ना, वर्ल्ड वहीं पे ही सारी कंट्रीज वहीं खड़ी So हैं. at this moment, you can procure MDF and produce or put all orders. हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? अब कुछ हमारे साथ को बोलेंगे कि हमारे साथ को एक बार में बोलेंगे कि मेरे को ये 100 शीट MDF की चाहिए, पर मेरे को ना इसकी फैक्ट्री से बैच अकाउंटिंग के थ्रू वो जियो लोकेशन भी चाहिए. अभी मना कर रहे हैं. हाँ, अभी मना कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो अच्छा, अब वो ना तो वो ला सकते ना वो फैक्ट्री ला सकती, क्योंकि उनको भी ये पूरा का पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना है, तभी यहाँ तक पहुँचेगा. तो फिर एज एन एक्सपोर्टर मैं क्या करूँ? मेरे को आप ये मतलब हमारी अब डिलीवरीज हैं तो हम क्या आप प्रेशर ही कर सकते हो, और कुछ कर नहीं सकते. ये बाइंग हाउस वाले बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जिनसे मैं काम कर रहा हूँ. मेरे को डेली बेसिस पे ईमेल यार आस्किंग प्लीज गिव अस EUDR सर्टिफिकेशन. आई हैव लॉट ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड, सब में MDF लगती हैं. आप मेरे को सोल्यूशन बताएं. मैं तो समझ गया जो सारा प्रोसेस जियो लोकेशन एज अ प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर. मेरे को ये बताएं हम MDF कहाँ से खरीदूँ? तो डेटाबेस अगर हमारे पास हो FSC अभी सप्लाई तो कार्ब सर्टिफाइड चाहिए होता है. कार्ब सर्टिफाइड सब है. दैट इज एवरीथिंग इज नहीं, अगर आपको इंडिया की फैक्ट्री दे, Contact me also. so my work is तो शायद मैं समझता हूँ कितनी नॉलेज है. आपने बोला कि अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं किसी को क्या समझा? ये विशाल जी के वर्ड्स हैं. ये पीछे 1 घंटा पहले तो ये हमारी इंडस्ट्री के चाणक्य हैं. बिल्कुल जी. तो अभी पहले इनको कहते हैं विशाल जी आप समझिए, और फिर आप बाकी अपने जो 300 मेंबर उनको समझाइए, फिर वो हमारे 10,000 एक्सपोर्टर को आगे हम हैंडल कर लेंगे. वो हमारा काम है, वो हम करेंगे. पहले आप अपने 300 लोगों को समझा. ठीक है जाने. तो यही मेरा कहना था कि मतलब करना क्या है. मैं कहना चाहूंगी कि आप भी एक्सपोर्टर कम्युनिटी के चाणक्य कम नहीं हो. सारे रेगुलेशंस आपको मालूम है. आप लीड लो और एक्सपोर्टर फ्रेटर्निटी को सिखाओ. हमारा काम 50% हो जाएगा. देखिए ऐसा है, जब भी कोई नया रूल रेगुलेशन आया है, चाहे GST है, या पहले कंप्लायंस जब आया था आज से 20 साल पहले, तो मेरी फैक्ट्री ने 2000 में कंप्लायंस कराया था. तो और 275 ऑब्जर्वेशन निकाली थी उन्होंने. आज की डेट में उनके लिए 2 निकालना मुश्किल है. स्टेप बाय स्टेप एक कदम चल के वहाँ पहुंचे हैं, और अभी इस चीज में मेच्योरिटी आएगी. अभी जिस तरीके मेरे ख्याल में हमारे एक्सपर्ट हैं, वो भी कई जगह अभी दे डोंट हैव एनी आंसर. अभी वो कहते हैं हमें मालूम नहीं आगे क्या करेंगे. तो स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच कि हमें आगे. पर एक कदम आज ये पहला स्टेप समझे हम ले रहे हैं, और इन्होंने जो जिस तरीके समझाया थोड़ा सा हमारे को भी समझ में आ गया. ABC आ गई है. अब शेक्सपियर बनना है, टाइम लगेगा. प्लीज अभी बायर्स भी थैंक यू. बायर्स भी क्लियर नहीं है. बायर्स को भी पता नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन. वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हाउ टू वो. मैं EDCH की तरफ से आपको एश्योर कर सकता हूँ, अलॉन्ग विद अवर चाणक्य विशाल जी की तरफ से, कि हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी ही एक अगला कदम लेंगे, फिर उसके अगला कदम चलते चलेंगे. आखिर में मंजिल चाहे 10वीं मंजिल पे होगी, पहुंच जाएंगे. डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. आपको सिर्फ ये करना है कि हिम्मत नहीं छोड़नी. हम कोई कंसर्न, क्योंकि मेरा पहला जब कमेंट था थोड़ा था एज एक्सपोर्टर था, अब मैं एज EPCH बात कर रहा हूँ. ठीक है. एक होता है ना कि पेशेंट और डॉक्टर में फर्क होता है. अब मैं डॉक्टर हूँ, उस टाइम पेशेंट था एज एक्सपोर्टर. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम हर थोड़े दिन बाद इस तरीके का सेमिनार करके
अगले स्टेप पे आए। और मैं विशाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे सचिन राजन को रिक्वेस्ट करूंगा और राजेश रावत को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंटिन्यूएशन में रखें। एक समझो एक पीरियडिकल करें कि 8 दिन बाद, महीने बाद हमने करना ही करना अगले स्टेप के लिए। तब तक ये सचिन जी कुछ ना कुछ नए इसके जो भी इनके अनआंसर्ड क्वेश्चन है उनके जवाब ढूंढ के लाएंगे। हम इन्हीं को पकड़ेंगे, इनको हिलाएंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे आगे का रास्ता जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्ट टेस्टिंग चल रही है 100 कंपनीज इन इंडिया, जिनकी हम सारे सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि समझने की बात ये है, जैसे लीगैलिटी की बात समझेंगे तो एक गुड की हार्वेस्टिंग के रेगुलेशन एक स्टेट में अलग हो सकते हैं, दूसरी स्टेट में अलग हो सकते हैं। तो वो एक कंपेंडियम, एक मैपिंग जिससे कि हम बता सकें कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हरियाणा पंजाब से जो शीशम हार्वेस्ट होती है वो नोटिफाइड है, डीरेगुलेटेड है ना, वो किसान आराम से लगा सकता है और काट सकता है, उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वही शीशम यूपी में आती है तो यूपी में उसको आने के लिए तो एंट्री में रॉयल्टी देनी पड़ती है 4%, दूसरा उसको यूपी में ट्रांजिट होने के लिए, वहाँ से बाहर जाने के लिए ट्रांजिट परमिट भी चाहिए होता है ओरिजिन। तो अगर वो वाली लकड़ी जो लीगली हार्वेस्ट हुई थी हरियाणा या पंजाब में शीशम की और यूपी में गई पर उसने वो 4% की रॉयल्टी पे नहीं करी थी, तो वो लीगल गुड इलीगल होगी यहाँ पर ना। और अगर क्या हुआ कि उसने वो तो करी थी, रॉयल्टी तो दी थी, अब यहाँ से उसने विदाउट एनी ट्रांजिट परमिट, मान लीजिए थोड़ा वैल्यू एडिशन होगी, वो सेमी फर्निश्ड होके गुजरात गई और वो उसकी टीपी नहीं थी, उसकी सप्लाई चेन में वो नहीं थी और वहाँ से फिनिश गुड होके तैयार जाने थे। तो ये जो ट्रांजिटिंग है विद द डिफरेंट कंट्रीज, अब इसमें क्या कर रही है, बड़े स्केल पे तो हम गवर्नमेंट के साथ गुहार लगा रहे हैं कि भाई जो ये एग्रो स्पीशीज हैं इनके ट्रांजिट रेगुलेशन जो है शुड बी द सेम अक्रॉस द कंट्री, जिससे डिफरेंट वो ना करना पड़े। दूसरा ये है कि जब तक ये रेगुलेशन गवर्नमेंट इस पर सोचती है, अपना कोई स्टैंड लेती है, तब तक हम इनकी जो भी सप्लाई चेन है उसको हम अपने सिस्टम में कैप्चर कर पा रहे हैं और डेटा दे पा रहे हैं बायर को भी, जिससे कि कल आपका दिया हुआ डेटा किसी भी सब्सटैंशिएटेड क्लेम के अंदर या किसी भी स्कूटनी के अंदर जब जाए तो वो गलत ना हो, कंट्री का रिस्क ना बढ़े और बायर का जो एक ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे, खराब ना हो। So that was my next question. How much tech enablement is needed for this? Tech enablement. मतलब कितना additional technology चाहिए सब चीज को implement करने के लिए? IT level. किसके लेवल पे? ये सारी information capture करना, comply करना, store करना. नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, सिर्फ जियो लोकेशन आप मानिए, बाकी तो आपको रिकॉर्ड नहीं है। और बाकी तो ये है कि आप अपने ऑटोमेशन करने के लिए अपने सिस्टम को और इम्प्रोवाइज करने के लिए अगर उसको IT में कंप्लीट करना चाहते हैं वो एक बात अलग है, बट एक छोटा कारोबारी वो मैनुअली रिकॉर्ड रख के भी इसको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको IT इंटरवेंशन इन अ बिग वे रिक्वायर्ड। इट इज नॉट ए ग्रीन लेन। जियो लोकेशन तो डिजिटली होगी ना। और जो स्टैंडिंग हमारे प्रोग्राम की वृक्ष की है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वी आर नोटिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हैव दिस प्रोग्राम इन प्लेस। कल गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से नेगोशिएशंस में अगर कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करेगी या कोई भी चीज़ पुट अप करेगी यूरोपियन यूनियन को, तो वृक्ष प्रोग्राम को करेगी, वो आपके FSC या PFC प्रोग्राम को नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप मतलब ये ना समझें कि FSC है तो चल जाएगा, वो जो चलने का टाइम था वो गया। अभी सामने वाले को कंप्लायंस के तौर पे एक ही चीज़ चाहिए, वो उसमें कोई प्रोग्राम है या नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी करें। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम सर्टिफिकेट देते हैं अपना उस पे शीशम की लकड़ी पे, तो we would have a provision on optional basis that the people who cannot manage the all information collection and then this kind of due diligence to be done at their level, or if they have a requirement to be done at the bridge level from their buyer,
So we would always be having this kind of an option to issue a due diligence statement in the form of certificate. This would we be coming up with for facilitate the small holders. नहीं हमारा हमें एक सर्विस है, ऑथेंटिकेशन बनेगा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी नहीं बनाएगी, यूरोपियन यूनियन से बात करके वो एक लेट स्टेज की बात है, बट एक ऑप्शनल सर्विस ये है हमारे। हाँ वही तो ना, तो ये एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है इसमें सब कुछ हो गया, इसके बाद कुछ नहीं मांगे। ये हमारा पहले से भी है और वो चल रहा है, लेकिन अब जो है EUDR की रिक्वायरमेंट्स उसमें एम्बेडेड कर दी है, डाल दी है। तो अब वो जो मांगेगा, यूरोपियन स्पेशली कोई भी मांगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सिस्टम से सर्टिफाई होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन इससे आएगी उसके बाद वो कुछ और मांगेगा। सर इसकी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे आप बता सकते हैं क्या? अगर इन केस ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसके, हमने COC बना दी, COC हमने दे दिया, उसमें हमने रिस्क पाया, रिस्क को मिटिगेट कर दिया, सस्टेन भी कर रहे हैं, उसके बाद सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई थिंक इसमें ऑडिट रिक्वायरमेंट्स भी है, तो क्या हो रिक्वायरमेंट्स आपको कुछ इसमें है इन्फॉर्मेशन? इसमें कहीं भी कोई ऑडिट EUDR की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कहीं कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की बात नहीं है। आप इसको अपने लेवल पे कर सकते हैं, बायर इसको अपने लेवल पे कर सकता है, बाइंग एजेंट आप ये सर्विस अपने वेंडर को दे सकते हैं अगर आप पे ये वाली एक्सपर्टीज है, और अगर कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो वृक्ष प्रोग्राम में ये ऑप्शन हमने क्रिएट कर दिया है। As well as I have a company which is a merchant export and has been FSC certified for 2-3 years. Now this EUDR regulation came in June last year. I studied this in June when it came, more than 1 year back. And we have been implementing EUDR in our company for the last 1 year. Now we have been doing it at a very basic and manual level without all the software. But I will tell you what we are doing. You tell me whether it is in the right direction. What EUDR said that a FSC certificate says that you are dealing in sustainable. That means there is no illegal harvesting, and basic sustainable would mean that it is grown from a farm where you have cut a tree, then more than one tree is being grown over there, so that it will be sustainable. That is a very basic definition. EUDR says that we do not believe this. Therefore, we need verification, and you have to prove from which farm, on what date it was harvested. In simple, that is the end result. It is a lack of trust in the system. Yes. So, I am a merchant exporter. I buy from a processor. That processor is also FSC certified. So, then I went to the timber trader from where he buys. That timber trader has his own wood cutting unit, which is FSC certified, and he is a trader for timber. So, they were not aware of this system, so they developed a system which is an app, and they buy from 1800 farms. So what they developed is an app where they put every transaction on that app, that I bought this from this farm, and all the regulations that you have given for the farm, effectively it means that like an exporter today, the customer wants you to be SEDEX certified. The farm also needs to be a compliant farm because they are maintaining all the records in terms of labor laws, ownership laws, property laws. So that mini farm is also in effect a SEDEX compliant company, though it is not certified for that, but it is following the rules and regulations. So what my timber trader did is he developed an app. He had all these 1800 farms mapped onto this, and when I gave an order to him to give timber to my processor, he specifically said that I have bought this timber from this farm. So what I needed was the GPS location on his invoice. So I said, any business that you do with me, any wood that you sell, mention the GPS location, and this I have been doing since December last year. So since then he has been giving me the GPS location, which goes on to my processor. In his invoice he mentions that, and he gives it to me. I mention it my invoice and I give it to my customer.
So I met my customers in January this year, and 90% of the European companies were not aware of EUDR in January. So I took a document and I explained to them, I said, this is a regulation which will be in effect after 1 year. So this is the system which needs to be followed, and I am going to implement this from right now. From January this year, I am going to mention GPS location on all my invoices. And that is what I have been doing. Now the challenge in that is that the system is in place, but there are very few timber traders or farms which are following the system. Therefore, if 100 people go over there, he will say there is no vote. So the challenge is first understanding the system, then following it, and then mainly it is the availability. That means at farm level it has to be adopted. Because unless the 1,000, 2,000, 10,000 farms do not adopt this, the wood will not come out from it. So your app is good because you are doing something on a collective level. But from my point of view, the challenge is, first of course people understand it. It's not very difficult to implement. I'm doing it on a manual level without any app. On a simple Excel sheet, I'm maintaining all the data. But now the problem which is happening is wood availability has become a shortage. That is not happening. So for that, if you have a database or if you are training, as rich as a government organization, this is my thought process that your input is very valuable to train at the farm level. Like what the ETCA did at grassroots level to train the artisans, which was the basic level. So if you can start off at the farm level and get them incorporated in the system, and then have so many number of timber traders and sawmills who are implementing it, then everybody will start getting it. Right now, even if they understand it, and even if they take your app, the shortage of wood is the critical point at this point, what I have experienced. I think we have a very fruitful discussion, I hope, and we have been able to clear some of the doubts. I know many remain, but as we go along, since we are working on this system for last 6 to 8 months, and we have our own learning, and some of it we have been able to disseminate to you. But as we go along, I hope that some more solutions will emerge, and we'll come back to you again with the system. But as Sachinji said, it is not very challenging. It seems challenging, but as our fellow exporter sitting right next to me has been able to do it for the last 1 year, so can you. So we need to work on it, we have to be at it, and we will definitely find a solution to it. Now, before I close, I would request Mr. Pasi to say a few words, and then Mr. Dhingra, would you like to say something? Pasi sir. क्योंकि मुझे लग रहा था ये भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, रोक रहा था और आप ये सोचेंगे कि आदमी कौन है, बैठा है, एफिशिएंसी ले रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको एक छोटा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑल्दो I entered export in 1984, मगर उससे पहले I worked in some forwarding company for 6 months। तब आइवरी बड़ी चलती थी, आपको पता होगा। कईयों की उम्र छोटी हो सकता है, उनको पता ही नहीं होगा कि आइवरी कहाँ से आई, कैसे आई। तो अक्सर क्या होता था कि आइवरी कम से कम 1 साल के 10,000 किलो आइवरी चली गई। तो ठीक है, बिकॉज प्रिंटेड मनी दैट टाइम, माय फ्रेंड आल्सो नवरत्न एंड ऑल दैट, दे आल्सो प्रिंटेड मनी एवरी टाइम। लेकिन ये आइवरी कहाँ से आ रही है? पता चला जी वो गुजरात से आ रही है। तो गुजरात से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? वहाँ तो कोई नहीं वॉर हुई थी, तब बड़े हाथी मरे तो आइवरी आई। अरे वो है जो चुनी बड़ी बड़ी डालती हैं गुजरात के अंदर लेडीज वगैरह। नहीं, वो जब उनका हस्बैंड मर जाता है तो वो जितनी चूड़ियाँ वो उसको जाके शमशान घाट में डाल लाते हैं। तो एक बंदा वहाँ पे जाता है या जो भी जाते हैं वो उसको बोरियों में पैक करते हैं, देन दे बाय 25 रुपीज़ किलो, फिर वो हम ले आते हैं, फिर उसकी एक बेकिंग करते हैं, देन ओके 35-50 रुपीज़ किलो सारा कुछ बेकिंग वगैरह डाल के, देन दे सेल इट इन 300 रुपीज़ किलो, 400 किलो। धीरे धीरे जैसे आपकी लकड़ी का भी आया तो उसमें मुद्दा यूरोप में भी आया
कि यार ये तुम बताते हो ये आई कहाँ से इतनी? उन्होंने बोला नहीं कि हिंदुस्तान में तो आपको पता बड़े हाथी थे, महाभारत टाइम के अंदर भी बड़े हाथी मरे और 5000 ईयर्स अगो, तो उनको इन्होंने घाणियाँ मारी कलाकारी सबकी। तुम ये बताओ कि आइवरी है कितनी इसकी डेप्थ? तो उन्होंने बोला कि 50,000 किलो आइवरी अवेलेबल है गुजरात, राजस्थान, ये वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, डन देने के डाका। फिर उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ को इन्होंने यहाँ पे उसकी स्थापना की, भाई तुम ये सारी, इन्होंने बोला 50,000 किलो आइवरी है, चलो तुम सबका बनाओ। तो उन्होंने बोला जी ये इस सर्टिफिकेट शिपिंग बिल के अंदर ये जाती रही, तो 50,000 किलो हो गई। तो उन्होंने बोला भाई बंद करो ये आप आइवरी, आपको पता है कि लोग मार रहे थोड़े से। उन्होंने नहीं आप क्या नया एक लुकूना ढूंढा। इन्होंने अफ्रीका से बड़े वहाँ से शुरू कर, अब वो अमेरिका में जाके, वो अफ्रीका में जाके चले गए। अफ्रीका वालों ने बोला भी तुमने कितनी आइवरी भेजी है? उन्होंने बोला कि हमने तो 20,000 किलो भेजी है। तो कहते हैं चलो ठीक है 20,000 किलो तो हम तुम्हें अलाउ करते हैं भाई। तो ये यहाँ से सिस्टम शुरू हो गया। देन उन्होंने बोला जी देखो गड़बड़ है, देर इज ए गड़बड़, वाइल्ड लाइफ वाले सारी सर्टिफिकेट वाइल्ड लाइफ से इनको इश्यू करो जब भी शिपमेंट जाए, और इनके सबके सिस्टम बनाओ। एक्सपोर्टर मल्होत्रा जी, रवि पासी है, इन्होंने कितनी आइवरी डिक्लेयर की है और कितनी आइवरी इन्होंने एक्सपोर्ट की है। जब एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा वी विल सी ऑल फॉर एवरीथिंग। तो वही हुआ जब ये इन्होंने थोड़ी सर्टिफिकेट के अंदर, डाटा के अंदर या स्टॉक के अंदर सारी हेरा फेरी शुरू की, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो अभी हमें बड़ा प्रेशर है फॉरेन से, ये मानने वाले नहीं है। अब तुम्हारे घर के अंदर अगर एक रिंग भी पड़ी है या अभी गणेश जी भी पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तुम सारे डिक्लेयर करो उसको सीख लो। तो वो टाइम से लेके आज तक जिसके बाद जितनी आईडी पड़ी है दैट इज सीड, वेदर यू गो टू आईडी मार्ट, जामा मस्जिद या तुम हैंडीक्राफ्ट जो कुतुब मीनार के पास है, इनके पास आज भी वो सारा सिस्टम है। तो मैं इतने सोचने के बाद ये कह रहा हूँ कि ये जो लकड़ी का आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह ये थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि मैंने जैसे उन्होंने बोला कि पंजाब के अंदर काफ़ी ग्रो करती है शीशम वगैरह, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे 3 या 4 साल में पेड़ एक बड़ी अच्छी तरह से ग्रो करता है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग टू यूपी, चलो 4% नहीं है तो आप उधर किसी भी आदमी को बोल के तो हरियाणा के अंदर ही एक मंडी बना सकते हैं इस चीज़ों की, शीशम की और जो टीकर वगैरह की। तो ये सिस्टम देखो अभी शॉर्ट पीरियड के लिए है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये 2-3 महीने 4 महीने के अंदर वो भी EUDR जो भी ये सब समझेंगे कि भाई ये एक गेम है। लकड़ी सारे वर्ल्ड में होती है, सारे वर्ल्ड में गिरती है, कहीं पे जैसे आजकल तूफान आ रहे हैं लकड़ी गिरती है, जरूरी थोड़ा चोरी होती है, कटती है, डिक्लेयर, बस एक सिस्टम है। जैसे सचिन जी ने बताया कि ये सॉर्ट आउट होगा और जल्दी सॉर्ट आउट होगा, देन वी प्रिपेयर पर हमें अपने हौसले नीचे करने की, एक्सपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट होगी और खूब हो रही है। कहीं भी मैं नाम भी नहीं लेना चाहते, जो इन्होंने बोला है कि बाहर से इंफॉर्मेशन आती है कि भाई इस ये बताओ कि जैसे इन्होंने ये सिस्टम वगैरह क्या है, तो उसने बोला कि मेरे को तो ये मैंने 10 ट्रक लकड़ी खरीदी है, अहमदाबाद से खरीदी है। उसको बोला भैया तूने कहाँ से खरीदी है, उसका पेपर लाओ, मेरी शिपमेंट रुकी हुई है, उसके 25 कंटेनर निकल गए अभी। सो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. As he said, this is a challenge, but opportunities only come from challenges. So this is opportunity as well. So thank you very much. Before we conclude, I would request Mr. Rajkumar Malhotra ji to present the memento to Sachin ji. Thank you, sir. Thank you very much. Now we have a very small feedback form which is lying in your kit. So I would request you to please